Perfect. So, all of you lovely people who have gathered in this beautiful meeting, there are basically three agendas which I want to cover. And अगर ये तीन agenda cover नहीं होंगे, then there's no point of the meeting. So, the first thing is I have an announcement. All my paid offerings related to income with impact, I'm closing them. All the people who have already paid, you won't be charged from the next month onwards. And आई गॉट दिस रियलाइजेशन yesterday बिकॉज एक बंदे ने मेरे पास आया, क्या नाम था उसका, सहज कुछ ऐसी ही था, एंड ही बुकड अ कॉल विद मी एंड ही वाज लाइक आई नीड हेल्प विद दिस एंड फ्रैंकली इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ मेंटल हेड स्पेस. एक इस पे फोकस करना, फिर दूसरे बिजनेस, फिर सॉफ्टवेयर पे भी, तीन चीज़ें पे. सो आई जस्ट कैन नॉट डू इट. लाइक इवन इफ यू पे मी 59 lakhs 69 lakhs, आई कैन नॉट डू इट. So yeah, from this date, this won't be present anymore, and I will be removing all links from all socials. And SalesGen is going to be my main priority apart from the other thing, and I'll be focusing entirely on it. What this means, if you're already an existing member of Income with Impact, then अगले महीने से at a small upgrade fee you will, like इस महीने से you'll be stop being charged, like जो लोग की monthly subscription थी, and from the next month onwards you only have to pay to for SalesGen. And उसके साथ में like all the things which were being taught over there, they'll continue to be taught. So yeah, like जो चीज़ मिल रही थी उसके साथ में एक्स्ट्रा आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा. बिकॉज I was thinking like how exactly do you ensure these people get better results, and nothing else came to my head instead of giving them access to this thing SalesGen. And अगर मैं ये चीज़ बोलता तब सब लोग सोचते दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपसेल यू एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस कि भाई आप पैसे देना चाहो तब भी नहीं कर सकते. सो द ओनली लॉजिकल ऑप्शन इज़ टू गो टू SalesGen. एंड उसके साथ में दिस कम्युनिटी जहाँ पे लिंक मैंने शेयर की थी, आई थिंक, या community, yep. So this community is going to be little step by step. I've kept it public right now, maybe in the future I'll make it private, but I won't be charging for this. But इस community I'm gonna share everything जो वहाँ पे आपको मिलता था completely free of cost, and it's going to be like step by step how exactly do you make money using SalesGen in this community. You can absolutely, like, this is not by the way ki I'm just trying to sell you SalesGen. If you want to do it without it, you can go buy your own software. कोई भी चीज़ जो करनी है, like all the things can be done without it, but it's just going to be much more difficult क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें इंटीग्रेट करके डक टेप करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो मच मोर एक्सपेंसिव. सो आई गिव यू फुल फ्रीडम. मैं आपको सारी चीज़ इस कम्युनिटी में सिखाऊंगा फॉर फ्री, एंड द ओनली थिंग विच आई हैव टू सेल यू इज़ द सब्सक्रिप्शन. एंड yeah, like if you don't even like that, like you can cancel anytime, but I'm going to give away all the secrets. And if you want to use the implementation, you can go to SalesGen, and you have full freedom and flexibility to just use anything else. But कुछ महीनों में I know you'll just come and buy SalesGen again because तुम्हें realize हो जाएगा like everything else is like 1,000 times more expensive and shittier compared to this. इससे related किसी के कोई भी questions? नहीं. लाइक कितना प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे अगले महीने से कितना पे करना पड़ेगा आईडी? SalesGen का प्राइस, इट्स, आई हैव नॉट डिसाइडेड इट येट. मेरी प्राइसिंग फिलोसफी सब में सेम होता है, लाइक सस्ते से स्टार्ट करो एंड जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग जब भी सेल आती है. फॉर एग्जाम्पल, इनकम विद इम्पैक्ट स्टार्टेड एट लाइक 900 भी नहीं, 250 रुपीज़ वॉज द फर्स्ट मेंबर, 499, 799, 1000, 1500, उसके बाद 2000, उसके बाद 2500 एंड 2800 राइट नाउ. सो उसके बाद बढ़ाना था क्योंकि बढ़ाना भूल गया, बट नाउ इट्स क्लोज्ड. So I don't know. You can text me on WhatsApp how much are you currently paying, and based on that, just a small menial fee, and you can get access. If that price is still too much for you, I believe in having long-term relationships, and you absolutely cannot afford it, I'll try to do something for you in the agreement that in the future you're gonna pass that goodwill away. कि मैंने आपको फ़ायदा किया है, तो जब आप एक अच्छी सिचुएशन में होगे, you're gonna help people as well. And yeah, यस. once you start making money, you can pay the full price. I can do that for you because, like, everyone says you're not supposed to have favorites. Fuck it, I like certain people and until I'll do certain things.
Any other questions ओके related to सर। this? नो सर। व्हाट अबाउट जिनने ईयरली प्लान लिया है सोमिल भाई? जिन्होंने ईयरली प्लान लिया है, यू कैन जस्ट कमेंट, लाइक व्हाट्सएप पे मुझे कोई भी मैसेज भेज दो, एंड जो प्राइस आपको ठीक लगता है उतने पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, जो आपको ठीक लगता है। आई एम नॉट गना ठीक है गिव यू अ प्राइस, वट एवर यू थिंक इट्स वर्थ इट, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड यू गेट एक्सेस टू दैट। जब ईयर एंड हो जाएगा, लाइक आई थिंक यू वर ऑन 17th August, 17th यस August यस 2025, you will be charged the normal pricing of SailGen जो भी उस टाइम होगा। तब तक whatever pricing you give me, that is going to be the final one. You can just text me on WhatsApp. Any other questions? Anyone else? कौन आया? Yeah. So that was the first thing. Coming to the second thing, I like end में बात, so I have some questions to ask you so that I can know exactly what you need help with, ताकि वही चीज़ बनाऊँ। Because if I don't understand you completely and I try to teach you something, कोई चीज़ समझाने का ट्राई करूँगा, ये चीज़ कर लो, like if I tell you how to hire people but you don't even have your first client yet, it's not gonna be the smartest thing, right? So right now, any questions you've had over the past weeks, anything related to anything जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी है, just ask it and I'm here to help. कोई पहले questions आपने डाले थे कम्युनिटी में कहीं पे, वो भी आप पूछ सकते हो ताकि मैं उनका आंसर दे सकूँ। So yeah, this is the second agenda of the meeting. लाइक अगर मैं अपना क्वेश्चन पूछूं तो जी मैंने जानना था कि आखिर आपने अभी जैसे वो इनकम पे इम्पैक्ट जैसे बंद कर देने वाले आप, जी। तो उस पर कोई नए कोर्सेज वगैरह भी आएंगे नहीं, तो मैंने जानना था कि वो सिस्टम जो आपने बोल रहे थे, लाइक सिस्टम्स, हाउ डू वी क्रिएट सिस्टम्स फॉर एनीथिंग, लाइक आप बोल रहे थे पिछली बार कॉफी वगैरह के लिए भी सिस्टम्स बनाना, लाइफ की हर एक चीज के लिए, लगभग हर चीज के लिए लगभग सिस्टम कैसे बनाए, लाइक किस चीज के लिए, लाइक एक बेसिक आइडिया मेरे दिमाग में है और उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए मेरे को थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए आपसे। What is a system? A system is a process where if we put certain inputs, we get certain outputs. Like इनपुट को थ्रूपुट से पास करके आउटपुट निकालना। लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया था टाटा कंपनी का, लाइक वो गाड़ियां बनाती है, लाइक उनके जो एक क्रिएटर है, उन्होंने एक गाड़ी डिजाइन की, फिर उन्होंने वो चीज सेम प्रोसेस बाकियों को सिखाई, वो गाड़ी हम कैसे बना सकते हैं। तो उसी तरह से हम ये कॉन्सेप्ट बाकी चीजों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। What do you what do you need to create a system for? उसके भी क्या यूटिलिटी आपके लिए? लाइक अभी तो मैं बिजनेस वाली चीजों में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें जो मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक जैसे सुबह उठने का मेरा मॉर्निंग रूटीन का एसओपी है, लाइक ये सर्टेन टास्क करूंगा, फिर उसके अगले टाइम बाद एक इंटेंस वर्किंग सेशन का सिस्टम, बोलते जाओ, मैं बस लाइक खुद के लिए पॉइंट्स लिख रहा हूँ। बोलो। इंटेंस सेशन का एक फिर एसओपी क्रिएट किया हुआ, लाइक बेसिक सा ये करना है, ये करना है जिससे मेरे को ये रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद अगला काम मैं कर लेता हूँ पॉडकास्ट का, लाइक जो आपने बोला था खुद के साथ शेडो वर्क वगैरह काम करने का, लाइक उसके लिए मैं खुद के साथ डेली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो पॉडकास्ट। उसमें एसओपी क्रिएट किया है, पहले मैं यस्टरडे पिछले दिन के लेसन्स वगैरह पहले उसके बारे में बात करूंगा, फिर थोड़ा बहुत शेडो वर्क, फिर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करके लाइक फिर पॉडकास्ट एंड कर दूंगा। फिर उसके बाद फिर से अगला सेशन आएगा लर्निंग का, उस टाइम पे मैं मेरे पास 1 आवर 30 मिनट होते हैं, तो मैंने उसको 2 सेशन में तोड़ा है, लाइक बिजनेस स्टफ के लिए थोड़ा सा और पर्सनल स्टफ के लिए। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट, बाथिंग प्रोसेस और इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह पहनने के लिए थोड़ा बहुत एसओपी क्रिएट किया है। फिर इस तरह से मैंने पूरे दिन का लगभग वर्कआउट वगैरह सबका मिला के बहुत सारे एसओपीज क्रिएट कर रखे, बेसिक। तो मैंने जानना था कि आखिर में उन एसओपीज को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। लाइक एक बेसिक आइडिया पता है कि हाँ डेली मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, जो मिस्टेक पता लगती है उसको इम्प्रूव कर देना सिस्टम है, अंटिल यू गेट द परफेक्ट सिस्टम।
एंड यू कैन टीच इट टू अदर्स, लाइक ये सारी चीज़ें। The first thing is, if you create a bad system, you will get bad outputs, obviously. And this is a mistake which I've made. I'll give you a very simple example. मेरी emails की जो sending domain की reputation है, मतलब somin.com जो ये साइट की है, इससे अगर मैं ईमेल भेजता हूँ, आई हैव अ टेरेबल सेंडिंग रेपुटेशन। एक और जो मेरा डोमेन है somin.store, उसकी टेरेबल सेंडिंग रेपुटेशन। उसको क्या करता था, लाइक आई डिड नॉट नो कि ईमेल पे अगर आप कोई लाइक इफ़ यू यूज थिंग्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, आप नंबर्स डालते हो, पैसे डालते हो, सो दैट रुइन्स योर रेपुटेशन, क्योंकि फिर वो स्पैम में जाता है। सो आई डिड नॉट नो दैट, बट दैट वॉज अ बैड सिस्टम, लाइक बैड इनपुट्स डाल रहा था। आई वॉज जस्ट इग्नोरेंट, आई वॉज डम, नहीं पता था। बट देन आई हैड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग आउट डेली न्यूज़ लेटर एवरी सिंगल डे, एंड वो सिस्टम बन गया था। आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि हाँ भाई, मेरा ईगो खुश हो गया, मैं तो ऑटोमेशन पे सारी चीज़ भेज रहा हूँ। बट इट वॉज अ बैड सिस्टम, क्योंकि मैंने कभी भी वो, अगर कोई ईमेल मार्केटिंग में उसे पता होगा, डी के एम, एस पी एफ, डी मार्क रिकॉर्ड्स, ये चीज़ें नहीं की थी। एक चीज़ होती है, यू कैन लाइक लर्न अबाउट इट, मैं अभी खुद सीखूंगा। गूगल पोस्ट मास्टर, इट्स अ टूल विच यू कैन यूज़ टू एनालाइज कि आपकी ईमेल जो होती है, लाइक हाउ एग्जैक्टली आर दे परफॉर्मिंग, आपकी डोमेन की क्या रेपुटेशन है। गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। Is it visible? Workflows? यस। Yeah. So let's say this system, इसके स्टार्ट्स, चलो ये तो बढ़िया है फिर भी, बट 73% डिलीवरेबिलिटी। अभी नए डोमेन्स लेने होंगे, बिकॉज नॉट द बेस्ट कोई ऐसा मिल जाए, इसका भी बाउंस रेट कम है। रुको दूसरा ढूंढता हूँ जिसमें थोड़ा ज़्यादा था। या 16.33% बाउंस रेट, बिकॉज द डोमेन इज शिट। मतलब ये लोगों को जा नहीं रहा, या तो उनके जो जीमेल है जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने मेरी ईमेल्स को बैन कर रखा है, और लाइक दैट्स द थिंग, लाइक कितना ही परफेक्ट हो जाए, हैड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ नॉट वार्मिंग अप द ईमेल्स। कोई भी चीज़, ये नया लाइक नए डोमेन से मैं भेज रहा हूँ, एंड आई जस्ट डिड नॉट नो इट। मुझे तब नहीं पता था, कोई बताने वाला नहीं था, तो उनकी डोमेन्स खराब, डोमेन्स की रेपुटेशन खराब हो गई थी। सो दैट लीड्स लाइक हायर बाउंस रेट्स, विच मीन्स कि सिस्टम मेरा पूरा था, लाइक आई वॉज सेंडिंग आउट लाइक हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स अ डे, एंड उसमें कंटेंट भी सब अच्छा अंदर था, लाइक कॉपी राइटिंग सारी चीज़ें बढ़िया थी, एंड इट वॉज ऑटोमेटेड सारी चीज़ें। बट आई वॉज जस्ट अनएजुकेटेड अबाउट इट, तो बुरे इनपुट से बुरा सिस्टम बना, एंड ऑब्वियसली दैट लेड टू बैड आउटपुट्स। और अगली चीज़ है, जितना ज़्यादा आप घटिया आउटपुट्स को स्केल करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम स्केल होती है। पता नहीं मेरी मम्मी एलेक्स हरमोजी को क्यों फॉलो करती है, एंड उसकी कोई रील मुझे बता रही थी, हाँ उसने बोला था ना कि इफ़ यू स्केल योर बिजनेस विदाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट, यू ओनली स्केल योर प्रॉब्लम्स। उन्होंने वो चीज़ बताई, एंड इट हिट मी। ये ईमेल्स को मैं अगर स्केल करूँगा, 1000, 10,000, 1 लाख ईमेल्स भेजूंगा, इससे और दिक्कतें आएगी, और मेरी डोमेन की रेपुटेशन ख़राब होगी। सो फर्स्टली डिसाइड कि ये जो तुम्हारा सिस्टम है वो एक्चुअली में अच्छा है भी या फिर नहीं। सो द थिंग इज, बिफोर जो थर्ड पॉइंट में is figure out like are your inputs actually good, and how do you do that? By being educated. How can you be educated? By learning about it. I can teach you outreach कैसे करना है, I cannot teach you how do you brush the teeth in the your, अरे वो हाँ, ये चीज़ दिख रही है, टाइमर, या आई जस्ट टाइमर ब्रश करते हुए मैं 3 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ, लाइक ये वो, दैट इज हाउ यू ट्रैक योर एफिशिएंसी। एंड मेरे को भी खरीदना पड़ेगा। कितने का है ऐसे?
अमेजोन पे था आई थिंक। लाइक ये चीज बहुत जरूरी है मेरे लिए, लाइक टाइम ट्रैक करते रहता हूँ मैं भी, तो मेरे को बार बार अपने फोन में या तो इस पीसी में देखना पड़ता है। 1200 के आसपास का था, ज़्यादा नहीं था। ये रहा। ले लूंगा मैं। ओके सर। ये नहीं कोई था, अमेजोन कर लेना। एंड ठीक है। दैट्स द थिंग, आई जस्ट केप्ट ऑन ट्रैकिंग इन दैट। एक वो चीज़ है ना, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। लाइक इतनी सारी स्टडीज़ है कि इफ़ यू जस्ट सिंपली ट्रैक योर कैलोरीज वॉट एवर, लाइक यू लूज वेट, जो मोटे लोग के लिए होता है। सो फर्स्टली लाइक ट्रैक एंड सी कि जो तुम इनपुट्स डाल रहे हो एक्चुअली में अच्छा है या नहीं। एंड द ओनली वे टू नो इज हैविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। एंड इसका ये मतलब नहीं है बस बुक पढ़ते रहो, पॉडकास्ट देखते रहो। क्रिएट समथिंग, सीक इन्फॉर्मेशन टू फिक्स इट। व्हाट्सएप पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, लाइक एज अ रूल ऑफ थंब, यू हैव टू सेंड थोड़ी सी लंबी ईमेल्स कंपेयर टू योर मैसेजेस विच यू सेंड इन लाइक इंस्टाग्राम आउटरीच एंड व्हाट्सएप आउटरीच। तो मैं ईमेल को व्हाट्सएप में भेज रहा था एंड आई वाज वंडरिंग लाइक इतने कम रिप्लाईज क्यों आ रहे थे। बट दैट वाज बिकॉज व्हाट्सएप पे इतना टाइम नहीं पढ़ते। जो लोग ईमेल पढ़ते हैं, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट दे यूजुअली रीड लॉन्गर ईमेल्स। एंड द अदर थिंग इज इंस्टाग्राम, लाइक सिंपल एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे तुम्हारी जो सोशल प्रोफाइल इट कम्युनिकेट समथिंग, बट एक कोल्ड ईमेल में ट्रस्ट बनाने के लिए यू नीड टू ऐड थोड़ा बहुत सोशल प्रूफ। सो these are small things which you have to see, and that only comes through just trial and experimentation and education. So that is something you have to find, क्योंकि आई डोंट नो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें तुम्हें सुधारनी, सारी थोड़ी बता सकता हूँ। The second thing is, I think you're an absolute retard for creating SOPs for everything, and I say it with the most amount of respect I have. Just chill out, bro. Like, सर। इतना ज़्यादा nerd नहीं बनना है. Like, I don't know. I don't know. Like, just imagine the men of World War II जो नॉर्मंडी के बीचेस पे जा रहे थे. Dude, they have like a fucking SOP for shaving. एक लाइक कॉन्सेप्ट वही करो. हम्म। एक कॉन्सेप्ट वो होता है. पेंडुलम वाली चीज आ गई। क्या? लाइक दो आपने वो वीडियो नहीं भेजी थी जैक हॉपकिंस की, न्यू एलिट पॉडकास्ट, उसने कहा था जो चीज आपका ज्यादा ज्यादा टाइम ले रही है, एनर्जी ले रही है, वो एक पेंडुलम बन जाता है, फिर वो ज्यादा एक्सेस इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा था। सो लाइक वो कॉन्सेप्ट अच्छे पेंडुलम से। का जिस बुक से उसने पढ़ा था, रियलिटी ट्रांसर्फिंग, उसका जो थर्ड चैप्टर इट्स ऑन बैलेंस. नेचर में सारी चीज़ इक्विलिब्रियम में चलती है. एंड आई एम स्टिल लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, बट इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल समथिंग टू मच, देन ऑब्वियसली बैलेंस फोर्सेस आएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड यू लूज द फकिंग एम. आई नो पढ़ाई कुछ काम नहीं आती, मेरी तो नहीं है अब तक, बट एक प्रिंसिपल था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में. It said the people who try to manage everything end up managing nothing. Micromanagement, like if a client or a customer of yours is trying to micromanage you, just leave them. They're the biggest pain in the asses and they don't know jack shit. Like they'll just make your life hell. Management by exceptions. Like क्या मेन चीज़ है उसको ट्रैक करो. आउटरीच जितनी कर रहे हो वो ट्रैक करो. सेल्स की कन्वर्जन रेट ट्रैक करो. डोंट ट्रैक कि एक मैसेज में कितने कैरेक्टर्स तुमने भेजे. That's just plain out stupidity. So I don't think so you need SOPs for everything. Just figure out and walk पे जाके just figure out what exactly works and what does not. I was speaking to Ujjwal 2 दिन पहले and उसे वही चीज़ बोली. I was like जब भी मैं like बॉक्सिंग में जब मैंने उसे नॉकआउट किया था, I had written it अपने डॉक्यूमेंट में फ़ोन पे and I read it every single morning that I'm the type of person who gives my opponents nightmares in boxing. When I throw punches, like for days they are fucking paralyzed. And वो बंदे ने बोला कि रात को सिर में दर्द हो रहा था, घूम रहा था. I wrote it, I visualized it every single day for at least a week and it became a fucking reality. And 3-4 दिन पहले मैंने करना छोड़ दिया. And then I noticed there's a direct correlation between the quality of my life, of my day. To be honest, like life तो बहुत बड़ी चीज़ है. Quality of my day and कितना मैंने वो चीज़ पढ़ी थी या नहीं. सुबह जो अल्केमी ऑफ सेल डॉक्यूमेंट होता है. एंड एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो डायरेक्ट कोरिलेशन. मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा फकअप वगैरह करके, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि रात को जब मैं वॉक पे जाता हूँ और मेरी लाइफ में कितनी पीस होती है एंड लाइफ में कितना प्रॉस्पेरिटी होती है.
सो यू जस्ट फाइंड इट आउट एंड थोड़े बहुत मेंटल नोट्स रखो. आई डोंट थिंक सो यू नीड टू क्रिएट एन SOP. मैं ये चप्पल पहन के इतने बजे निकलूंगा. माई ब्रदर कॉल्ड मी लास्ट नाइट. आई प्लान ऑन फिल्मिंग लाइक अ पॉडकास्ट चलते हो, बट ठीक है, दैट्स माई ब्रदर. आई एम नॉट गोना बी लाइक मेरा SOP कहता है ये चीज़ नहीं होगी. सो डोंट माइक्रो मैनेज. जस्ट डू द मेन थिंग विच इज जस्ट बुकिंग अपॉइंटमेंट्स एंड गेटिंग सेल्स. आई डोंट थिंक सो और कुछ होता है. एंड the last thing which goes back into the first thing is you need proof before automation. You need proof before automation. मतलब वही चीज़ हो गई ना, एक बेकार चीज़ को ऑटोमेट करोगे और बेकार होगी. घटिया ईमेल भेज रहे हो और उसको ऑटोमेट करोगे तो स्पैम बॉक्स में जाओगे. और जितना और उसको ऑटोमेट करोगे, जितना और लाइक ऑटोमेशन कैन नेवर बी एज गुड एज मैनुअल. इट कैन बी 90% गुड, 95% गुड, बट नेवर 100%. और तुम्हारी जो मैनुअल चीज़ अगर वही बेकार है, then it's kind of useless. And obviously this is in business context, like life mein I don't know how you can automate things, but you have to find the biggest bang for your buck. For example, मैंने एक SOP तुम्हारे साथ शेयर किया था. यहाँ पे है क्या? या बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला. या ये यूज़ किया. सो अच्छा आई बहुत. शेयर दिस SOP. इट वर्क सारी चीज़ें जो है. एंड यहाँ पे राइट ऑल नेगेटिव बिलीव्स रिलेटेड टू दिस डोमेन. तुमने अगर तुमने मेरी तरह किया, मैंने तो बहुत बड़ी लिस्ट बना ली थी. लाइक उसको पूरा पढ़ने में क्या आधा घंटा लग जाता था. बट देन आई रियलाइज इट वाज स्टुपिडिटी. सो देन उसमें से मेन जो चीज़ें थी मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया. एंड नाउ इट टेक्स मी 10 minutes. सो जितना ज़्यादा कम कर सकते हो उतना कम करो. एंड try to get the biggest bang for your buck. Try to establish a proof of concept by tracking things. अगर ये मेरे पास यहाँ पे stats नहीं होंगे, how do I even know if I'm improving or not? And that comes to your last question, like how do you improve a system? Figure out bounce rate किससे बढ़ता है. And before you come to me, just ask ChatGPT, ask Google. इतनी सारी चीज़ें हैं. All of the things which I learned, like most of them I learned myself. For example, ये जो ऐप है सेलजन की, लाइक यू कैन यूज इट लाइक अ नॉर्मल ऐप ऑन योर फोन. सारी चीज़ें जो है लाइक आई कैन कम हियर, आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन यूज इट लाइक अ नॉर्मल फ्रिकिंग ऐप. बट अगर तुम एप्पल के पास जाओगे, किसी भी डेवलपर के पास जाओगे, यू हैव टू पे लाइक tens and thousands of dollars. Ask Ujjwal. I spent I don't know if he's in the meeting or not. I spent like 1 to 2 days just focused on one thing, कैसे इसको मैं फ्री में बना सकता हूँ. I developed a code which I can paste over here. And this code allows me, like I don't know coding jack shit के लिए. I don't know coding for jack shit and this code allows me to use it like an app. तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड होता है, तुम्हारे PC में डाउनलोड होता है. Just because I had that fucking drive. And if you don't have this curiosity, I don't know how you can win. सारी चीज़ें सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलती है. या लाइक इसके बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने. मैड ग्रे की और चैट जीपीटी से ट्राई किया था, लेकिन बहुत बेकार आंसर दे रहा था बाद में. वो चाहे मैं उसको कितने सारे क्वेश्चन पूछ लूँ, एंड में जाकर कुछ बेकार ही दे रहा था वो. लाइक प्रीमियम वाला नहीं है मेरे पास. किससे रिलेटेड बेकार दे रहा था? लाइक सिस्टम वगैरह और बाकी चीज़ भी, जिस चीज़ में मेरे को हेल्प चाहिए. लाइक लीड जनरेशन के लिए मेरे को मैं ये क्या कर सकता हूँ एक्स्ट्रा करके, थोड़ा बहुत, ये थोड़ी बहुत चीज़ है बिजनेस की. और मतलब लाइक अगर मैं चैट जीपीटी के पास बोलूँ हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम, फिर उस पर मैं अपने थॉट्स देते रहूँ नीचे तक, जब तक मेरे को एक परफेक्ट आंसर ना मिले. उसको मैं जितना चाहे देते रहूँ, मतलब प्रॉम्प्ट्स देते रहूँ, एंड में जाकर वो मेरे को हमेशा एक बेकार आंसर ही देता है. मतलब अजीब जैसे then आंसर you're देता bad है at जो prompting. अलाइन. You're bad at asking questions. वो चीज़ या गलत दैट नहीं है. माइट बी अ प्रॉब्लम. मुझसे भी नहीं आता है, बट इट्स नॉट रॉन्ग. बट मैंने उसे अच्छे से नहीं बताया. आई वॉज आस्किंग हिम टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इनक्रिप्ट मीडिया कंपनी है. अब इनक्रिप्ट में उसको तो पता है ना, ई से स्टार्ट होता है. मुझे पता है एन से स्टार्ट होता है, उसकी में ई नाम नहीं है. सो मेरी गलती है, उसकी गलती है. सही कहा. यू आस्क हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर व्हाट? डज इट इवन नो व्हाट योर बिजनेस इज? Today, लाइक you ask ChatGPT, write me an email sequence, and obviously it's shit because it does not know how you write. I'll just open my ChatGPT. It's one of the most powerful tools in the world, but गधों की तरह यूज़ करोगे नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पूरा ट्विटर है, उज्जवल स्क्रेप्ड ऑल माई ट्वीट्स जो भी सारी थी, एंड आई अपलोडेड दिस लाइक पूरा एक CSV फाइल ऑफ ऑल द ट्वीट्स, लाइक 1350 ट्वीट्स के आसपास. इसने पूरा एनालाइज किया.
I'm like, I'm providing you a list of all my tweets so that you understand what my writing style is. In the future, whenever I ask you to write anything or create anything, make it look like I wrote it because you have access to how I write. Give clear instructions से डेटा तो दो. डेटा ही नहीं दोगे क्या होगा? Like, it's very good. एग्जाम्पल सारी चीज़ें देता है और उसको दे दो, अपने आप सारी चीज़ आएगी. बट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन. उसके बाद I'll give a very simple example. You'll ask ChatGPT how to improve my sales and it will give you generic bullshit advice and then you'll say sales बेकार है. Why not you just go and create a transcript of your sales call, सारी चीज़ें जो तुमने बोली थी and prospect ने बोली थी, and you just try to figure out कि what exactly went wrong and तुम ChatGPT को वो चीज़ देते हो. If you समझ record गया. using Loom, like yeah, like let's say this is your sales call जो आज वीडियो बनाया. You can just come over here. You can go to the transcript and boom, पूरी transcript है तो. You can come over here and click on like download captions. Boom. Go to ChatGPT. Upload it. And just be like yeah, बता दो. And करके दे देगा तुमको. If you're like Somil, I'm very very broke and I don't have Loom, I don't have $15 to give. Go to Wistia. Wistia.com, क्रिएट अ फ्री अकाउंट. 10 वीडियो फ्री में अपलोड कर सकते हो. उसको डालो विस्टिया आप अपने आप तुम्हें वो ट्रांसक्रिप्ट बना के दे देगा एंड अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट. या तो ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर लो या पूरा कॉपी पेस्ट कर लो. सोमेल आई लर्नड दिस थिंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियो एंड वो यूट्यूब वीडियो में उसने कई सारे गाइड्स और फ्रेमवर्क्स दिए थे. कैन यू टेल मी लाइक हाउ एग्जैक्टली कैन आई टेल ChatGPT दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू? गो टू द यूट्यूब चैनल, लेट्स से ये चीज़. Do you think बूम, पूरा ट्रांसक्रिप्ट है. जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग एंड टेल ChatGPT. You have to use your brain भाई. And what else? Another example. क्या आया था? बहुत प्यारा आया था दिमाग में, अब भूल गया. Anyway, sorry. कोई नहीं. हाँ जी. Other questions sir? नहीं, अभी नहीं है. लाइक अगर मैं एक्स्ट्रा करके अगर मेरे दिमाग में अचानक ही आया था जब मैं वो पेंडुलम वाली चीज पूछ रहा हूँ. लाइक उस बुक से कुछ आपने एक्स्ट्रा सीखा, जैसे रियलिटी ट्रांससर्फिंग से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझ आए, I लाइक just उस चीज filmed को. a 30 to 40 minute video today. It will be uploaded या तो आज या कल. And it's honestly great. जो भी चीज़ मुझे समझ आई उसमें वही है. Main things are don't chase money like a bitch. जितना मीडिया करते हो, it sounds like philosophy but I've shared a lot of examples जिससे समझ आएगा वीडियो में. And the other thing is what else? The other thing related to that which I learned is जो चीज़ मेन थिंग इज जो चीज़ आप चाहते हो ना हो वही चीज़ होती है. You know what you don't want. You don't want to go to college. I know that. I've spoken to you. But you don't actually know what you want. You have a vague idea. हाँ पैसा सारी चीज़ होगी. But you cannot write a 500-page book on it. And the basic concept of the book जो अब तक समझ आया लाइक 4 घंटे सुन के, अभी तो बहुत लंबी 20 घंटे की है शायद, is thought energy is important and powerful. जिस चीज़ पे थॉट्स जाते हैं वही चीज़ होती है. सो इफ यू जस्ट थिंकिंग नहीं चाहिए वो चीज़ प्रॉबेबली सच होगा. सो जस्ट चिल द फक आउट. एंड आई वाज लाइक सुबह से कुछ खाया नहीं था, सो 2:30 के आसपास आई वाज मेकिंग लाइक एग्स एंड कॉफ़ी. एंड वहाँ पे भी आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट. टाइम पास हो जाता है बढ़िया. एंड वहाँ पे उसने एक चीज़ बोली, योर हार्ट इज़ नेवर रॉन्ग. It's always your mind which is wrong, and that fights with your heart and your soul, and because of that it causes unnecessary stress in your life, and your mind is constantly battling with your heart, and instead of focusing your conscientious energy towards getting what you want, you're spending it over there. Simple आसान शब्दों में आप गलत बस इसलिए होते हो क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा it's kind of fucked up. Your soul and your heart is always pure, and you've created an illusion in your mind that this is how things should be.
and the reality is not aligning with that, and because of that you're having these fights between your head and your heart. तो अपने दिल को बोल रहे which is your soul that it's fucking wrong, all of that crap, and then your heart is fighting back, your mind is fighting back, and your energy is going over there instead of actually progressing. समझ गया। बस इतने ही थे मेरे क्वेश्चन आज के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा लाऊंगा, और मैं नेक्स्ट टाइम से बिजनेस रिलेटेड लाऊंगा मैं। Anyone else in this call who wants to ask? कौन कौन है? सोमिल, आकाश, कबीर, मयंक, चिराग, प्रज्वल, प्रतीक, साहिल, सौरभ, जियान। एनीवन? देखो ये होते फट्टू लोग मेरा जो एक भाग ही जाते हैं। क्वेश्चन है मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अभी कुछ दिनों से ना आई एम एक्चुअली ऑफ ट्रैक हूँ, मतलब आई एम नॉट दैट प्रोडक्टिव एज आई यूज्ड टू बी। पता नहीं यार, जब से मेरा लैपटॉप वगैरह ले लिया है, आई एम जस्ट गोइंग इन डाउनवर्ड स्पाइरल डे बाय डे। आज आज तो मैं जल्दी वगैरह उठ गया, मतलब मेरा स्लीप साइकिल भी विद इन 5 to 6 days फक्ड है पूरा, मतलब बहुत वो, मतलब मैं पता नहीं यार, कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ, ये एल्केमी के वगैरह एंड कॉल्स वगैरह पूरे कर रहा हूँ, बट या बिजनेस रिलेटेड मैंने इतना कुछ प्रोग्रेस किया नहीं है। एंड हाँ, बस यही बोल सकता हूँ मैं। Why do you think this is happening? ये मेरे पॉइंट से, मतलब जस्ट फॉर माई रेफरेंस। Maybe I'm just coping. That's not a very good answer. What do you think is the cause of concern? Cause of concern, मतलब What do you think is stopping you? What do you think is the reason for that? What is a downward spiral? Can you define it? शायद से मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूँ इसके वजह से। किसकी वजह से? आईजी और मतलब आई हाँ, आई एम मोस्ट लाइकली कंज्यूमिंग मोर एंड नॉट प्रोड्यूसिंग मोर, consuming stuffs which is not necessary and required, which can actually change me या फिर change my business, and wasting my time on unnecessary stuff and using that unnecessary thing as a coping mechanism and to feel good by doing that thing. The first thing is everyone says become he who can. But Alex Hormozy sir ने बोला था do then be. If I just like जिम जा जाके अपना जिम रोटाई बन जाते हो पहले दिन में, ठीक है, इट्स नॉट सपोज टू फील नेचुरल एंड कंड्यूसिव, बट योर राइट नाउ, क्या बोलूँ, वट एवर थिंक यूर सेइंग, आई डोंट बी प्रोडक्टिव, सारी चीज़ें एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, इफ यू जस्ट टेक सम एक्शन it will be fixed. And you need to have a grand realization. ये मेरी लाइफ में भी होता है. Every day we put some work off that we'll do it tomorrow, and today was not the best, but कल अच्छा होगा. But then you have to ask yourself, कभी फटनी चाहिए कि when will that tomorrow come, क्योंकि अगले दिन भी यही बोल देते हैं. Who's calling me? Promotional call, fuck off. And
ये चीज़ तो मेरी लाइफ में भी होता है. So the only thing is, I also, no one's perfect. Yesterday my morning was perfect. Like, I woke up jaldi. I did some work, high leverage work. 300 outreach personalized boom, एक बटन दबा के. Not hard work but ठीक है, like 3 घंटे वेस्ट करूँ एक बटन दबाऊँ, बात तो सेम है. Then I had coffee. I went out in the sun. अच्छा लगा. ठंड हो रही थी. जिम के लिए रेडी हुआ. I went to the gym. I absolutely did not feel like going to the gym. But then I hit legs. पूरा किया. बीच में I was thinking बीच में चला जाऊँगा, अजीब सा लग रहा था. But then say whatever you want to say. Like, I think if you're a guy, then girls are the biggest source of energy and motivation. I was about to leave and two beautiful ladies walked in. And I spoke to them. अच्छे से सब बढ़िया हो रहा था जिम में. Then they started playing music, so everyone was happy mood, happy mood, happy mood. I worked out for another 30 minutes. An uncle came and I met him after a long time. He's a very cool uncle. I spoke to him for a while. उनसे बात करके अच्छा लगा. And ये सारी चीज़ हो गई. I was in a pretty freaking happy mood. Then I went to a cafe. I got myself एक दो cup coffee and I just started working on the things I was supposed to work on. There's no better feeling of dopamine जब एक चीज़ जो दिमाग में सोच रहे हो तो कैसे सॉल्व होगी और वो सॉल्व हो जाती है. एंड आई फिगर आउट समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो मैं फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा था बट नहीं हो रही थी. बट आई गॉट द सोल्यूशन. उसके बाद वो चीज़ कर दी. लाइक इंसेनली हाई लेवरेज वर्क, वट एवर इट वॉज. एंड once that was done, I was feeling on top of the world. I went home, गाने अच्छे चल रहे थे गाड़ी में सब, and I was feeling pretty optimistic. I came back home, I had eggs, थोड़ी बहुत coffee, I did some work. And उसके बाद 3 बजे बुरा फील होना स्टार्ट हो गया. Like, I don't know, बुरे actions. I ate some shitty food. And it happened, like, it continued till 5:30. आई वॉज फीलिंग डाउन. लाइक आई स्टिल स्क्रोल रील्स. लाइक 10 मिनट हो जाता है कभी कभी हफ्ते में 2 बार. लाइक 10 मिनट कुत्तों की तरह, गधों की तरह रील्स देख लो. एंड देन आई जस्ट टेक्स्टेड माई फ्रेंड्स, गेट द फकिंग बॉक्सिंग ग्लव्स एंड कम. एंड मुझे तो बहुत चिड़ मचती है, तो गुस्सा निकालने के लिए आई जस्ट फकिंग बीट द शिट आउट ऑफ पीपल. आई गो टू बॉक्सिंग, दे शो अप एंड वी स्टार्ट बॉक्सिंग. उसके बाद एक बंदा था मेरा दोस्त. ही वॉज स्पारिंग विद समवन. हिज गर्लफ्रेंड वॉज वॉचिंग एंड मेरा दोस्त पिट रहा था. बट लास्ट में उसने पंच मार दिया ऑब्वियसली उस बंदे को इन फ्रंट ऑफ हिज गर्लफ्रेंड. एंड आई फील प्राउड कि भाई मेरे दोस्त ने मारा. सो यू फील हैप्पी फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल. आई आस्क्ड पीपल टू स्पार मी. नन ऑफ देम वांटेड टू स्पार मी बिकॉज आई एम गुड अकॉर्डिंग टू देम. आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत अच्छा हूँ. माइक टाइसन तो बिल्कुल नहीं हूँ. उसके बाद बॉक्सिंग में भी अपने राउंड में आई चैलेंज अ 25-year-old. वो बंदा आया नहीं. So then I fucking sparred with someone else and I felt good. 2-3 मुक्के मुझे भी पड़े, उसको भी मारे. And it was nice. Once that was over, I came back home. I did some more work. बढ़िया लग रहा था. I spoke to my mom for 5 minutes, 10 minutes अच्छे से. And उसके बाद I went out for a walk. Walk पे I spoke to my brother who I fucking love from the bottom of my heart, my cousin brother. And I spoke about life to him. उसके बाद जब वो वॉक कर रहा था रात को, करीब 10:30-11 बज रहे होंगे. देन मेरे कुछ दोस्त थे, वो आ गए. उसके पास एक डॉग था. नाउ दैट डॉग, लाइक डॉग्स आर मैजिकल मैन. आई प्लेड विद दैट डॉग. बास्केटबॉल थी उनके पास, तो लाइक आधा घंटा बास्केटबॉल भी खेल लिया 11:40 तक. और उसके बाद आई केम होम. सो आई वेंट फ्रॉम प्रिटी हैप्पी टू एक्सट्रीमली टेरेबल. समथिंग रिलेटेड टू यू, लाइक तुम्हारी जैसी अभी सिचुएशन है. बट इट जस्ट टेक्स मोमेंटम. एक छोटी सी चीज़, दैट स्मॉल डिसीजन ऑफ मी जस्ट पुटिंग ऑन माइक टाइसन मोटिवेशनल सॉन्ग, दैट वॉट एवर जो भी गाने, स्वेटर वेदर, एंड देन टेकिंग माई फकिंग ग्लव्स एंड गोइंग टू देयर प्लेस, स्पारिंग विद पीपल, एंड दैट स्टार्टेड अ पॉजिटिव अपवर्ड स्पाइरल. सो डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे होता है वैसे अपवर्ड स्पाइरल भी होता है. एंड वॉट स्टार्ट्स स्पाइरल, यू डिड नॉट थिंक कि यहाँ पे जहाँ पे तुम डाउनवर्ड स्पाइरल में हो वो चीज़ शुरू हो जाएगी. यू जस्ट थिंकिंग लाइक या ब्रो कुछ ऐसी छोटी चीज़ है, उससे क्या पता चलेगा इतना नीचे आ जाएंगे. सो द ओनली थिंग आई से इज जस्ट डू समथिंग. एंड इट डज नॉट इवन हैव टू बी रिलेटेड टू मनी. मैं बिजनेस रिलेटेड कुछ भी करने का ट्राई करता हूँ, जब स्पाइरल में होता हूँ हो ही नहीं पाता. सो मोस्टली आई सीन द बेस्ट थिंग्स आर डू समथिंग फिजिकल.
and something which you can see a tangible result from. I don't like running and stuff because running से tangible benefit नहीं मिलता. So lifting weights or boxing, because I don't know, it is tangible, it feels, so at least उस बंदे को मुक्का मारना, and something where you can just take out your anger, because the people who say anger is a bad thing, like they just stupid. गुस्सा सबको आता है, अगर अच्छे से हेल्दी तरीके में निकाल ले तो बढ़िया है, अदरवाइज यू बिकम अ फकिंग क्रिमिनल. एस्केपिज्म इज़ अ बिग थिंग. आई नोटिस तुमने मुझे मैसेज भेजा था, सो लाइक वो स्टोरी होता है ना इंसान में डोपामीन की, स्टोरी में क्या है, यू पोस्ट अ लॉट ऑफ रील्स ऑफ रोनाल्डो. रोनाल्डो डज नॉट नो यू एग्जिस्ट. इट्स गुड टू लुक अप टू पीपल, बट वंस अगेन जैसा आकाश कह रहा था, इफ़ यू नॉट रेड द बुक पेंडुलम, it's another pendulum. And in the book Reality Transforming, it just said like no pendulum is fucking conducive to your life. And ठीक है, look up to people, be happy for the success, whatever, but don't idolize them. Don't idolize me, bro. I take a shit in the morning. I have so many fucking flaws. Everyone has flaws. इंसान सबके सामने बहुत परफेक्ट बनता है, बट सब में दिक्कतें होती है. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि परफेक्ट है. सो डोंट फकिंग आइडलाइज समवन, एंड don't try to live the life you want to live by being a part of their success. उसको नहीं पता. तुम जब उसकी वो रील डालते हो, देखते हो, तुमको लगता है मैं रोनाल्डो की तरह वर्ल्ड कप में खेल रहा हूँ मेसी के अगेंस्ट, बट यू आर नॉट हिम ब्रो. एंड यू हैव टू जस्ट रियलाइज इट. लाइक आई फेल्ट टेरेबल जब मैंने माइक टाइसन की फाइट देखी. आई एम लाइक ब्रो, ही इज फकिंग गेटिंग पेड 10 20 million $30 million. इस बंदे की फिजिक मुझसे ज़्यादा अच्छी एट द एज ऑफ 60, whatever. And I was watching that fight because it was just escapism. I wanted to envision myself that I'm winning like a boxing championship uske through, and that's stupidity. So just get rid of everyone. Like don't think about anyone. Be happy for success जिन लोगों को मिलती है, and that's it. And coming to the thing, once again जो चीज़ पहले कह रहा था, the only thing which you can do to get out of a spiral is take some fucking action. The fourth thing is don't listen to your head. Like you use your head too much. Just be थोड़ा बहुत stupider. Like you use your head to psychoanalyze everything, and that's not very smart. Like don't think कि maybe this is the reason that is happening. Just do something. You can be thinking like, yeah, they took my laptop away, so that means I cannot record my sale call, which means I'll not be successful. But you can just be stupid and be like, yeah, like I have my phone and that's all I need. These fucking retards, they're like printing money using their fucking phones. I close so many deals. Like मैंने ये लैपटॉप पे सेल्स कॉल लेना बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है. उससे पहले आई जस्ट पुट ऑन लाइक ईयरफोन्स 300 रुपये के जो आते थे, एंड जो फ़ोन था पहले से, वो फ़ोन में लगा के सेल्स कॉल लेता था. इफ आई डिड नॉट नीड अ लैपटॉप टू मेक मनी. सेल्स कॉल के लिए फ़ोन होता है, तुम अपनी जीमेल से भी कोल्ड ईमेल भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आउटरीच कर सकते हो. आई स्टिल यूज़ इंस्टाग्राम ऐप फॉर आउटरीचिंग एंड आई साइन क्लाइंट्स उससे. द होली डिफरेंस इज मैंने शायद गूगल मीट पे कॉल ले ली, तुम नॉर्मल फ़ोन कॉल ले लो. नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई क्लोज क्लाइंट्स विद दैट. साइन मार्केटर को कौन जानता है? डज एनीवन नो साहिल? नाम सुना था बस. Yeah, this guy, he does 50-60 lakhs a month, not in a year, in a fucking month. And वो आई स्पोक टू हिम ऑन फोन. मैंने उसने मुझे बोला जूम की लिंक भेज दे. मैंने बोला मेरे पास जूम नहीं है. जस्ट कम ऑन द फकिंग फोन कॉल एंड गेट आउट ऑफ योर फकिंग हेड मैन. बी स्टूपिड. आई वाज जस्ट स्टूपिड कि ये बंदा मेरे पास आए, बंदा मेरी मदद चाहता है. सो ठीक है, whatever it is, I was dumb. At least I got the opportunity. तुम लोग सोच रहे थे ये बंदा क्यों करेगा, वो क्यों करेगा, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, and you're stuck where you are. I just had some humility to ask Shad Khan a question when he got on the call. It was not supposed to be around me. And boom, like he does 25 lakhs a month. It's in front of you, bro. I'm not special.
सौमिल तूने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी होगी, तभी उसने रिप्लाई किया, डू यू सी आई डोंट इवन हैव पंक्चुएशन, आई डोंट इवन राइट इंग्लिश, आई डोंट इवन राइट ब्रदर chill out, like that's not even a fucking sentence. And you just have to be fucking stupid sometimes, maybe. Any other questions, sir? हेलो हाँ जी. सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको बिल्कुल ही बिगनर, आपको कुछ पता नहीं कि किस तरीके से पैसे बनाने हैं, तो फिर एज अ बिगनर आप क्या करते हैं? लाइक दिमाग में तो यही आता है सारे यूट्यूबर्स को देखकर कि कंटेंट बना दो, वीडियो बना दो, उसके बाद कोर्स या ई बुक लॉन्च कर दो। मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ, मैंने अभी तक 80-90 वीडियो बनाई होगी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं एग्जैक्ट एडवाइस दूंगा जो शाद खान ने मुझे दी थी, हाँ। बिकॉज आई बिलीव दैट्स वेरी गुड एडवाइस. 100 outreach. Why not content? I'm not saying content बेकार है. Content is something which I still make because it's extremely high leverage. But एक चीज़ समझो, मैं वीडियोस नहीं देखता. So if you want to reach out to me, if you want to sell me something, you cannot sell me content की मदद से. There are just 4 ways. Referrals, वो अभी तुम्हारे पास कस्टमर नहीं है तो आ नहीं सकते. एड्स, उसके तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है. कंटेंट जो अभी तुम बना रहे हो, इसको रोकना मत, बट पूरा टाइम मत दो, बनाते रहो. एंड द फोर्थ इज आउटरीच. वाई आउटरीच? बिकॉज यू कैन डिसाइड किसको तुम्हें करना है. एंड यू नो कि अगर मान लो मुझे 100 लोग को मैसेज करके एक बंदा मिल रहा है और मुझे 10 लोग चाहिए तो 1000 मैसेज करने हैं. सो दैट्स व्हाट आई वुड डू. दिस इज व्हाट आई विल डू इज just start reaching out to people, at least 100 a day. इससे नीचे मत जाओ. And you do it for 100 days. Alex और मोजी की 100 million leads का, like it's impossible to not get a first paying client. 90 वीडियोस बना ली तो ये तो कर ही सकते हो. 100 मैसेज भेजने हर रोज़ 100 लोगों को. क्या भेजना है मैसेज में? जो भी तुम्हारा ऑफ़र है. एंड ऑफ़र इन सब की क्लासेस बाद में लूँगा, अभी इसमें बहुत छोटा, मतलब इतने कम टाइम में समझा नहीं सकता. Outreach, book appointments, and deliver a service. In the USA, I think 78% businesses are service-based businesses. क्योंकि अभी तुम्हारे पास प्रोडक्ट लाइक क्या करोगे? सॉफ्टवेयर बेचने के लिए कॉस्ट लगती है बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसिव फिक्स कॉस्ट होती है. लाइक आई हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स. एंड इट्स लाइक अगर है तुम्हारे पास पैसे, श्योर गेट इन टू इट. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मनी टू रिस्क, then don't start a software. The option is to sell a product, but product में वही है, बहुत ज़्यादा सेल्स चाहिए. प्रॉबली तुम्हें या तो इन्फ्लुएंसर लेने होंगे या फिर एड्स चलानी होगी, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन होता है कंटेंट बनाना, बट तुम्हारे पास ऑडियंस अभी नहीं है. सो या वो चीज़ भी नहीं कर सकते. द थर्ड थिंग इज़ फकिंग सर्विसेज. सो फिगर आउट व्हाट पीपल वांट. जो भी तुम्हारे कोर्स आ रहे दिमाग में कि कोर्स बेचूंगा, कोर्स में जो भी चीज़ तुम प्रॉमिस करो, जो सिखा रहे हो, बाकी लोगों के लिए करो. स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करोगे, लाइक देर आर 2 थिंग्स. डन फॉर यू, डन विद यू, डू इट योर सेल्फ. डन फॉर यू इज़ कि मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मैं आपकी फेसबुक एड चलाऊंगा. डन विद यू इज़ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फेसबुक एड्स होती, लाइव कॉल पे आके आपको जो दिक्कत होगी मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, बट काम आपको करना है. डू इट योर सेल्फ होता है कि फेसबुक एड्स का मैं कोर्स दे रहा हूँ आपको. दिस इज़ डन विद यू. ये जो वीडियो में, सॉरी कॉल में आप देख रहे हो, डू इट योर सेल्फ इज़ मैं यूट्यूब का जो वीडियो है उसको एज अ कोर्स देता हूँ. लाइक ये वीडियो मैं प्रॉबली यूट्यूब पे डालूंगा, बट अगर मान लो यूट्यूब आपसे पैसे लेता है ये वीडियो देखने के, 500 रुपये दो, फिर ये वीडियो देखोगे. दैट इज़ डू इट योर सेल्फ. एंड डन फॉर यू इज़ आप मुझे अपना फेसबुक के एड मैनेजर का एक्सेस दे दो एंड मैं आपके लिए एड्स चलाऊँगा. दैट इज़ सिंपली इट. एंड अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है. अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, पैसे कम है, सो यू हैव टू ट्रेड योर फकिंग टाइम फॉर मनी. सो गो डन फॉर यू, क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा बट पैसे भी ज़्यादा आएंगे. जब तुम्हारे पास एक सिचुएशन होगी जहाँ पे तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, देन यू कैन कम टू समथिंग लाइक डन विद यू. एंड जब तुम्हारे पास बहुत पैसे एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम एंड यू वांट टू स्केल, कम टू डू इट योर सेल्फ. दिक्कत ये आती है जो सारे क्रिएटर्स मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं, इज़ दे जस्ट वांट टू सेल अ कोर्स एज सून एज पॉसिबल विदाउट डूइंग द रियल वर्क. एंड अगर तुम एक बंदे को बोल रहे हो मैं तुम्हें ये चीज़ करना बताऊंगा, जब तुमने बाकी लोग के लिए डन विद यू, सॉरी
डन फॉर यू में किया ही नहीं। लाइक इमेजिन मैं तुम्हें बोलता हूँ मैं तुम्हें फेसबुक आर्ट चलानी सिखाऊंगा, बट मैंने 10 लोग के लिए कम से कम फेसबुक आर्ट सक्सेसफुली नहीं चलाई है। एम आई इवन क्वालिफाइड टू टीच? सो इफ आई वॉज यू, गेट अ सर्विस। लाइक अगर नहीं आती कोई स्किल्स तो सीख लो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और स्किल्स के बिना अगर तुम्हें लगता है पैसे आएंगे, नहीं। डोंट बिकम अ वीडियो एडिटर। ये नहीं कह रहा वीडियो एडिटिंग बेकार है। बिकम समवन हु प्रोमिसेस कि आपका वीडियो वायरल जाएंगे और उससे ग्रोथ होगी, उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। पीपल डोंट वांट वीडियो एडिटिंग, पीपल वांट मोर रेवेन्यू। एंड वीडियो एडिटिंग एक छोटी चीज़ है, उसके साथ क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कैसे टाइम पे डिलीवर करना है, कैसे सिस्टमाइज करना है, कैसे ऑटोमेट करना है, कैसे बंदे को रीच आउट करना है, कैसे उसे परसुएड करना है, सेल्स कैसे करनी है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, ये सारी स्किल सीखनी पड़ेगी अगर चीज़ें करनी है। अदरवाइज़ 500 रुपये 1000 रुपये एक एडिट के कमाने, वो चीज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है अगर वो चीज़ आपको करनी है। सो इफ आई वॉज यू, फाइंड अ फकिंग स्किल, reach out to 100 people a day minimum for like 100 days and like जितना मैनेज कर सकते हो, जब तक टाइम अलाउ करते जितना कर सकते हो, जस्ट डू इट। एंड उसके बाद जब होगा तब थोड़ा सिस्टमाइज करने पे जाना, ऑटोमेट करने पे जाना, डन विद यू पे चले जाना, वॉट एवर। दैट इज वॉट आई वुड डू। अभी 116 सब्सक्राइबर है, वहां पे कुछ कर सकता हूँ? उसको एक लेवरेज की तरह यूज़ करो। मेरा यूट्यूब वीडियो जो है, लाइक आई डोंट केयर उससे आया या नहीं, बट सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक बंदा था बहुत सक्सेसफुल, उसको मैंने 2.5 महीने पहले रीच आउट किया था, और तब उसमें बहुत ईगो था, बदतमीजी से बात कर रहा था। मैंने कॉल वॉल छोड़ दिया, मैंने बोला मैं नहीं कर रहा। उसके बाद उसको रिसेंटली मेरी यूट्यूब की कोई वीडियो उसके फीड में रिकमेंड हो गई, एंड ही वॉच्ड इट, ही वाज लाइक ये बंदा अच्छी चीज़ें बोलता है, एंड ही रीच आउट टू मी अगेन इंस्टाग्राम पे। दैट्स द पार। आई डोंट सी कंटेंट कि उससे बेचना है, आई सी इट एज कि उससे क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है, एंड ऑब्वियसली सेल्स आएगी। यूल बी सरप्राइज, मुझे लगता था कि मेरे वीडियो कौन देखता है, बट इतने सारे लोग जिनको मैं रीच आउट कर रहे दे लाइक हाँ मैं तेरे वीडियोस देखे हैं। सो द थिंग इज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर आप वीडियो बनाओगे गेमिंग पे, ये सारी जो चीज़ें होती है जिस पे सारे लोग बना रहे हैं, लाइक आई नेवर बी, लाइक आई एम सेइंग इट पब्लिकली, आई नेवर बी एज फेमस एज शारिंगटन। आई कैन से इट पब्लिकली, क्योंकि अगर आपको फेमस होने, चीज़ें करनी, ग्रो होना है, आपको मासेस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड मासेस डोंट फकिंग नो व्हाट द फक इज अ सिस्टम। लाइक डू यू थिंक शारिंगटन की ऑडियंस में कोई भी बंदा जो बोलता है कि हाँ ये सिस्टम चाहिए, like the only calls I book are with the highest quality people, and that's a trade-off I'm willing to take, quality versus quantity. And वो चीज़ उसको भी पता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। उसको पता है कि उसकी ऑडियंस के पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तभी उसने जो भी चीज़ लॉन्च की है सस्ते में लॉन्च की है। सो बी अवेयर क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या चीज़ करना है। आई एम नॉट विलिंग टू बी अ क्लाउन। मैं 40 की उम्र में हो ही नहीं सकता कि बहनचोद वायरल होने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बना रहा हूँ उन चीज़ों पे जिसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई हैव अ रूल फॉर यूट्यूब दैट आई ओनली क्रिएट कंटेंट ऑन व्हाट आई वांट टू स्पीक अबाउट, एंड ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पीपल बिकॉज यू अट्रैक्ट हु यू आर। तो क्या आप अपने जैसे लोग लाना चाहते हो? इफ़ नॉट देन अपग्रेड योर सेल्फ एंड देन क्रिएट कॉन्टेंट। बनाते रहो, मे बी डॉक्यूमेंट योर जर्नी, जो चीज़ें सीख रहे हो उस पर वीडियोज़ बना लो, बट डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस कि इससे कुछ करना है मुझे। तो बेसिकली अभी क्या क्या स्किल्स चाहिए? मुझे क्या पता आप क्या बेच रहे हो। मैं वीडियो बना सकता हूँ, मतलब मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि एआई की मदद से वीडियोस कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे बना सकता है। और मैंने आपने कुछ खुद वीडियो बनाई है बनाया? उस पे। हाँ, उस पे व्यूज तो है, लाइक 5-6 हज़ार व्यूज आए हैं उस पे। तो फिर आप सिखाना क्यों चाहते हो? बना के दो लोगों को। मतलब अब कितने बनाने से इतने पैसे आएंगे नहीं ना। खुद देखो मैं कितनी वीडियो बनाऊंगा, हफ्ते में 3-4 निकालूंगा, आपके उस पर पास टाइम बहुत अभी लगेगा, कितने एडिटिंग पैसे करनी आ रहे पड़ेगी हैं? उस पे। अभी कितने आ रहे हैं? अभी उस पे 116 सब्सक्राइबर है और एवरेज में 2-3 हज़ार व्यूज आते हैं। एक वीडियो पे 5.6 आपके के पास कुछ व्यूज अभी लेते पैसे कितने आ रहे हैं? हैं। पैसा एक भी नहीं आ रहा। तो फिर जितने भी आएंगे जीरो से तो ज़्यादा है। पहले वहाँ तक हम्म। तो पहुँच जाओ, उसके बाद सोचना ना अब आगे का। ओके। जो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ वो 20 साल बाद नहीं करूँगा, बट अगर आज मैं अपना एक हेज फंड खोलने जाऊँगा नहीं कर सकता, उसके लिए अलग चीज़ें चाहिए।
बट ये नहीं बोल सकता ना अभी मेरे पास हेज फंड की वो कैपेबिलिटी नहीं है, हेज फंड चाहिए मुझे तो वो मेरा अल्टीमेट बिजनेस है, प्राइवेट इक्विटी में घुसने, बिकॉज दैट्स द बेस्ट बिजनेस। मेरे पास $200 मिलियन थोड़ी है एक कंपनी का शेयर खरीदने का, 50% शेयर। तो समझो, वो चीज़ लेने के लिए, उस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए कुछ करना होता है। जिम में 20 kg से डंबल कर्ल मारने से पहले 2.5 kg से शुरू होता है, उसके बाद 5 kg। 5 kg से तुम्हारी ड्रीम फिजिक नहीं बनेगी, बट उसके बिना कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो शुरू तो करो, आने तो दो, उसके बाद देखेंगे, बाद में बात करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन एल्स? चैट में किसी ने कुछ लिखा? Any books you would recommend? ऑन व्हाट? Whatever you are reading. आपको क्या चीज़ अचीव करनी है उस हिसाब से बुक्स होती है ना। दोस्त ये माइक बंद करने का क्या सीन होता है? खोल के बोल दो ना, पूरी बात हो जाएगी, फिर कर लेना। शर्म आती क्या बोलने में? मतलब आप करंटली क्या पढ़ रहे हो अभी वैसे? रियलिटी ट्रांसफरिंग। अच्छा, बट आपको किस चीज़ से रिलेटेड बुक जाननी है, वो पूछना चाहता हूँ मैं। बिजनेस। उसमें क्या? ओवरऑल एक्सपेक्ट, हम्म? ओवरऑल सब कुछ। ओवरऑल क्या होता है? कोई एक दिक्कत होगी तब ना। या तो आपके पास सेल्स कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको लोग चाहिए, रेप्स हायर करने हैं, या फिर आपके कोई आउटरीच पे जवाब नहीं दे रहा, आपकी कोई कॉल पे नहीं आ रहा, आप सर्विस डिलीवर नहीं कर पा रहे, कुछ तो होगा। आउटरीच पे आपकी क्या कंपनी है, क्या करते हो, कितना आउटरीच भेजे, क्या स्टार्ट से रिप्लाई रेट क्या है, क्या ऑफर कर रहे हो, लीड मैग्नेट क्या चीज़ कर रहे हो, बताओ तो थोड़ा। वेक क्वेश्चन के वेग आंसर कंस्ट्रक्शन नहीं। कंपनी वैसे मेरी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप आउटरीच क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरी तो ये है, बट मुझे अगर साइड हसल में अगर कुछ करना है अलग से ऑनलाइन। मैंने तो दोस्त आज तक साइड हसल नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता मैं ढंग से इस पे जवाब आपको दे सकता हूँ। मैंने तो पूरे दिल से ही सारी चीज़ें की है, तो कोई और लोग होंगे मुझसे अच्छे, वो आंसर कर देंगे शायद। एनी अदर क्वेश्चंस किसी और के? मयंक, सौरभ, हेलो सामिल जियान। भाई। जी। सामिल भाई, जी सर। वैसे सर मैं तो इंडिया से नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ। तो जी। अगर मैं आपके साथ सेल्स कॉल पे आना चाहता हूँ तो मतलब मैं तो मतलब रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, मतलब मुझे आपको डॉलर पे करना पड़ेगा। आपने खुद ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हाँ, दे दिया मतलब हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते या फिर नहीं लेते और चीजें नहीं होती। वो तब आपको ही करना पड़ेगा। एक्चुअली सच्ची बात क्या था, मतलब सच्ची बात यह है कि मतलब लोगों के पास अ, चीजें करने के लिए डिवाइसेस नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि फोन से, बेसिकली लोगों के पास फोन ही है भाई, ये और ये सच बात है, ठीक है। लोगों के पास लैपटॉप नहीं है और वो लोग समझते हैं कि लैपटॉप के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। समझने और दो, मैं क्या और करूँ। और 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 फोन से जो होता है वो मतलब मतलब
पहले तो ये बिलीव ही नहीं होती कि फोन से होता है, ठीक है, फोन से होता है, और जो मतलब फोन से करना होता है वो बहुत टफ है, ये मान के मतलब ये जो आकाश अभी चला गया, मतलब आकाश मेरे को आउटिस किया था एक मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक से, मतलब मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, ठीक है भाई। कोई नहीं। इंग्लिश नहीं, माफ करना, मतलब उसने मेरे को आउटिस किया था, और उसने बोली कि तुम मतलब जैसे कि मैं लोगों मतलब समझ गया वो क्या एंटरप्रेन्योर की, आउटरीच करता है, पता है, समझ गया उसका ऑफर। हाँ जी, पता है उसके ना, आगे। मतलब ये चीज समझ मतलब मुझे मतलब उसने तो मतलब सब कुछ नहीं बताई फुलफिल की एक्चुअली में क्लाइंट कैसे पाते हैं, ठीक है, और मतलब ये चीज कि एक्चुअली में क्लाइंट कैसे पाते हैं, तो तुमने किया क्या है अभी तक क्लाइंट लेने के लिए? अरे भाई, क्लाइंट लेने के लिए मेरे पास तो कोई स्किल होना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता। हाँ भाई, ऑफ कोर्स लगता है भाई। मैंने तो साइन करने के बाद समझा कि क्या स्किल सीखनी है। मैंने आज तक हाँ कभी बैठ के ये नहीं सोचा कि हाँ ये स्किल सीखनी है फिर कोर्स ले लेता हूँ। जब कोई दिक्कत हाँ आती है उसे सॉल्व करने के लिए स्किल सीखनी पड़ती है। जब तक वो हाँ हाँ। दिक्कत नहीं है तब तक मुश्किल ही होता। तो मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तो क्लाइंट लेता पहले, फिर सोचता कैसे स्किल से क्या सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व कर पाते रिफंड दे दो, कर पाते हो बढ़िया। लेकिन क्लाइंट मतलब क्लाइंट मैं मतलब पाऊंगा कैसे? किया क्या है आपने सर पाने के लिए, ये पूछ रहा हूँ मैं। जैसे कि मतलब लोगों को मतलब सवाल है आपने क्या किया अब तक पाने के लिए। मतलब किया नहीं है, छोड़ा है, मतलब बुरी आदत थी उसको छोड़ दी। मैं पूछ रहा हूँ आपने आज तक क्लाइंट पाने के लिए क्या चीज़ की है। मतलब की है मतलब बुरी आदतें छोड़ी है ना भाई, मतलब बैड हैबिट्स छोड़ दी कुछ। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? पूछ रहे हो कि आपने मैंने कुछ पाने के लिए क्या किया है? बाकी सब लोग, क्या मैंने ये सवाल पूछा था? क्लाइंट एक्वायर सौरभ करने के लिए भाई, क्या क्या? सौरभ भाई ये पूछ रहे कि वो लोग जो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उन तक आउटरीच करने के लिए तुमने आखिर किया क्या आज तक, मतलब वो क्लाइंट पाने के लिए आज तक किया क्या है। जैसे तुम मेरे नथिंग। क्लाइंट हो, मैंने तुम्हारे को आउटरीच किया था, तो उसी तरह से तुमने आज तक किसको आउटरीच किया है कि क्लाइंट पाने के लिए। किसी को नहीं भाई। तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हो? हम्म, मैं मोटा हूँ, मैं जिम नहीं जाता, बट मैंने जिम जाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, मैं पतला कैसे हूँ? कुछ तो करो। जब करोगे तब दिक्कत आएगी तब आना। हम्म, अच्छा। बांग्लादेश में कॉइन बेस है, बांग्लादेश में बाइनांस है, और क्रिप्टो में पेमेंट्स लेते हैं। ऐसे लोग मुझे पता है जिनसे बात किया, बांग्लादेश में छाप रहे हैं भाई। बाइनांस क्रिप्टो में पेमेंट ले लो। इंटरनेशनल अच्छा। पेमेंट प्रोसेसर होते हैं, वूप स्ट्राइप, तुम्हारे वहाँ बन जाएगा, अकाउंट बनाओ। रोके थोड़ी कुछ होगा। हाँ भाई, ठीक है। जी। एनीवन एल्स? क्वेश्चंस एनीवन? हाँ जी, किसी के क्वेश्चंस, और डू वी मूव टू पार्ट 3, द थर्ड थिंग ऑफ द एजेंडा? रोहित, प्रज्वल, मयंक, कबीर, any questions or do we move ahead? Move ahead. No questions. Perfect. Anyways, the third agenda of the meeting. सबसे पहले I made the announcements. After that I told, सारे जो क्वेश्चन से आंसर कर दिए.
And now the third thing of the meeting is to genuinely understand you and help you. What are you guys struggling with the most right now? Because I want to know, ताकि बाद में जो भी sessions निकालूँ, I can help you solve those problems using SailGen. क्योंकि अगर दिक्कत ही नहीं पता होगा तो फिर क्या करूँगा. एंड या ये चीज़ बाद में लास्ट के लिए एक बंदे के लिए गिफ्ट. सो या दैट्स द थिंग. बट उससे पहले व्हाट आर यू गाइस स्ट्रगलिंग विद द मोस्ट राइट नाउ? लाइक मेरे को बहुत सारे मतलब वो एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ते हैं लाइक लीड स्क्रैप करने के लिए. व्हाट्सएप रॉकेट, व्हाट्सएप फाइंडर, लाइक बहुत सारे एक्सटेंशन. लाइक उस चीज़ की प्रॉब्लम सेल्स जेंस में फिक्स हो जाएगी. तो मैंने उसके बाद जानना कि फिर उस लीड्स वगैरह को एकदम प्रॉपर वे में मैनेज नहीं होता है मतलब उसमें गूगल शीट्स में. लाइक वो कैसे करते हैं वो जानना था मैंने. एक एग्जांपल चैट दोगे तब जीपीटी से समझ करते हैं. आएगा. जैसे मैंने इस इंस्टाग्राम से ग्रोमैन आईजी करके एक एक्सट्रैक्टर है, उससे लीड स्क्रैप करके उसकी सीएसवी बना के जैसे गूगल शीट्स में डाल दी. लाइक वो एकदम कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपने आप ही डाल देता है. लाइक उसको रिमूव करना बहुत सारा झंझट होता है. लाइक खुद मैनुअली बहुत सारा अलग अलग काम करना पड़ता है. लाइक वो उस चीज का कोई सॉल्यूशन है स्क्रीन शेयर सेल्सजेन करके एआई एग्जांपल में. दिखाओ. लाइक वो चीज मैंने डिलीट कर दी एक्चुअली. आज सुबह मेरे को कोई भी और चीज़ बहुत का खाली एग्जांपल करना दिखाओ था. तब समझ आएगा ढंग से. चेक कर दो होगा कि नहीं मेरे पास. लेट मी चेक. कैमरा ऑन करके बात किया करो, ऐसा लगता है दीवार से बात कर रहा हूँ. चले गए सर. बाकी लोग व्हाट आर यू गाइस स्ट्रगलिंग विद द मोस्ट राइट नाउ व्हिच आई कैन हेल्प यू विद? देखो जब तक यहाँ पे घूंगों की तरह बैठे रहोगे कुछ होगा नहीं ना. क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं है क्या करने तो क्या ही कर सकता हूँ. एंड दैट्स द थिंग मैन. नो वरीज. कोल्ड आउटरीच में ऑन आईजी. आपकी आवाज़ नहीं आ रही जियान. नहीं. लाइक अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये मैंने इंस्टाग्राम से उठाए हुए थे. तो इसमें मेरे को पता नहीं लग रहा कि कौन मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं. लाइक सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है और मेरे पास सॉल्यूशन एक है. लाइक प्रोडक्टिविटी वाला, लाइक उनकी बैड हैबिट्स वगैरह, वर्क मैनेज करना, वर्कलोड मैनेज करना, इस चीज़ का सॉल्यूशन है. लेकिन सबकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है. पहली चीज़ वो नहीं लगती पता. और दूसरी इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मतलब ये है. लाइक ये पूरा मेरे को मैनुअली कई बार करना पड़ता था. और एक प्रॉब्लम थी लाइक वो दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रही. ये तुमने स्क्रैप कैसे किया? मतलब क्या डाला स्क्रैप करते वक्त? लाइक स्क्रैप नहीं, मतलब जैसे मेरे को फ्रीलांसर टारगेट कर रहा हूँ, फ्रीलांसर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी सर्विस बेच रहा हूँ. तो मैं कोई एक बड़े फ्रीलांसर के पास मतलब उसका अकाउंट खोला, उसकी फॉलोइंग में गया, लाइक स्क्रैप कर दिया. लाइक ये था शायद से ग्रोमैन आईजी दिस. लाइक इससे किया, फिर वो CSV डाउनलोड करके गूगल शीट में पेस्ट कर दिया. फिर आगे इनको बारी बारी तब मेरे को आउटरीच करना पड़ता है. देखो कोई भी एक स्क्रैपर होता है. क्या होता है? एक कोड होता है. जस्ट अ सेकेंड, आई गेट बैक टू यू. एक कोड होता है जिसकी मदद से वो डेटा निकालता है. तो अब मैं उसे बोलूँ बेटिंग ऐप पे ही वेबसाइट्स पे जाओ और सारे ईमेल्स निकाल,
एंड मैं एंटी बेटिंग एड चलाना चाहता हूँ एक कंपनी के लिए, दैट्स स्टुपिडिटी. सो यू नीड टू फिगर आउट वेयर एग्जैक्टली तुम्हारी जो कस्टमर प्रोफाइल है, कहाँ पे उनका एक कंसोलिडेटेड डेटा हो सकता है, लाइक कहाँ पे वो मिल सकता है. आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. या सो जैसे ये है स्कॉट्सडेल, सैलॉन्स, आउटरीच, वट एवर, इनकी लिस्ट भी होगी. सो व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू गूगल मैप्स. अब एक बंदा होगा यहाँ पे कॉल में या यूट्यूब पे, अगर कोई देख रहा है, वो बंदा देखना एग्जैक्ट सेम कॉपी करेगा मेरी जो भी आउटरीच में से था, वर्ड बाय वर्ड, और उसके बाद सोचेगा उससे रिप्लाई क्यों नहीं आ रही. तो कोई ये सोच रहा था तो मत करना. एनीवेज, अब नहीं, ये कोई और स्कॉट्सडेल आ गया. या सो यू जस्ट सर्च इट अप ऑन गूगल मैप्स, एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. एंड ये पूरी लिस्ट हमने स्क्रैप कर दी. एंड जो स्क्रैप लिस्ट थी उसमें करीब 300 एंट्रीज थी. या आई थिंक यही है. या सो देर आर अराउंड 300 कॉलम्स यहाँ पे, अलग अलग डिटेल्स, अलग अलग डेटा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे था उनका यूआरएल क्या है, लाइक यूट्यूब चैनल है उनका तो क्या लिंक है, वेबसाइट का क्या लिंक है, उसके बाद लाइक उनकी बिजनेस का नाम क्या है, कि क्लोज है या नहीं, स्ट्रीट एड्रेस कौन से स्टेट में है, उसके बाद कितने रिव्यूज़ है, सर्च पे उनकी रैंकिंग क्या है, लाइक 368 वट एवर, एंड पोस्टल कोड वगैरह. उसके बाद में था कुछ चीज़ें तो थे, लाइक उनके फ़ोन नंबर्स क्या है यहाँ पे, लाइक अगर दूसरा फ़ोन है तो वो चीज़ क्या है, एंड बेसिकली लाइक अ लॉट ऑफ डिटेल्स. सो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड फिगर आउट इनमें से क्या चीज़ें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे इमेज यूआरएल नहीं चाहिए उनका जो भी बिजनेस है उसकी, लाइक जो फोटो, आई डोंट नीड दिस शिट, लाइक इससे मेरा कुछ नहीं होगा. सो आई डाउनलोडेड इट एंड यहाँ पे गया, लाइक कहाँ पे है, कहाँ पे है, एंड नहीं कॉन्वर्जेशन में नहीं, सॉरी कॉन्टैक्ट्स में. यू गो ओवर हियर एंड यू सर्च अप, लाइक हाँ ये रहा ना. तो इन सब को जब मैंने रुको, वेर वहाँ पे आ जाएगा ना बल्क एक्शंस. या सो दिस वाज द थिंग जब मैंने किया था. हाउ डू आई सी जो इंपोर्ट हो गए. या तो जब इंपोर्ट कर रहा था जो फील्ड नहीं चाहिए थे मैंने नहीं डाले. फॉर एग्जांपल मैंने बस नाम, मतलब नहीं, ये आई जस्ट ओपन इट डायरेक्टली. आई डोंट नो अब उस लिस्ट का नाम क्या था जो मैंने इंपोर्ट की थी. यही होगा, ये भी नहीं है. ये होगा, ये, हाँ ये. सो इफ़ आई गो टू लेट्स रैंडम कॉन्टैक्ट, लेट्स से इसको खोलता हूँ. आई ओनली इम्पोर्टेड द थिंग्स विच आई नीड इट. फॉर एग्जाम्पल नाम तो नहीं मिला, गूगल मैप से स्क्रैप नहीं होता, बट आई ओनली इम्पोर्टेड द नेम, आई वॉन्टेड द ईमेल, आई वॉन्टेड उसका फ़ोन नंबर. एंड जैसे कुछ चीज़ें नहीं होती, फॉर एग्जांपल वेबसाइट जो है इसकी नहीं है तो नहीं आएगी, जिसकी थी वो चीज़ आ जाएगी. उसके बाद फेसबुक अगर है आ जाएगा, इंस्टाग्राम इसका था तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन उसका था तो यहाँ पे लिंक्डइन आ गया. उसकी गूगल सर्च पे क्या रैंकिंग आती है. सो द थिंग आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहले तो वहाँ पे जाओ जो सारी चीज़ें हैं. इफ़ आई वॉन्ट सैलून्स इन स्कॉट्सडेल, आई विल नॉट सर्च सैलून्स इन लंडन आउटरीच करने के लिए. दैट स्टुपिडिटी. सो सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट वेयर एग्जैक्टली आर दीज पीपल हैंगिंग आउट, कहाँ पे होते हैं. एंड वंस यू हैव फिगर्ड इट आउट, देन यू सिंपली गो ओवर एंड देन यू कम ओवर योर लाइक कॉन्टैक्ट्स में जाओ. एंड जस्ट क्लोज दिस एंड यू कैन कम. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. इंपोर्ट कर लो एंड लेट्स से मैं CSV अपलोड करता हूँ.
थिंक यही था. या सो आई थिंक यही वो थी CSV. प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग. होना तो यही चाहिए. इतनी ज़्यादा CSV होती भूल ही जाता हूँ कहाँ पे. या दिस इज़ द थिंग. तो अब ये जो है इनको मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा. एंड मान लो बस मुझे सिटी करनी है जो भी चीज़ है. लाइक ऑब्वियसली यू कैन मैच ऑल दीज फील्ड्स, क्रिएट कस्टम फील्ड जो भी है. बट जब सारे हो गए, मान लो मुझे 5 कॉलम इंपोर्ट करने हैं, आई एम जस्ट लाइक, या डोंट इंपोर्ट डेटा इन अनमैच कॉलम्स एंड बूम डन. ये इंपोर्ट कर लो. सो सबसे पहले फिगर आउट हु यू वांट टू ऐड. किन लोगों को आपको टारगेट करना है, कहाँ पे वो कंसोलिडेट होते हैं, एंड कैसे उनको आप स्क्रैप कर सकते हो. एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्क्रैप करने के लिए वो चीज़ कर लो. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से इनका ही आउटरीच का एग्जांपल ले लेता हूँ. आई होप शुरू हो गया जाना. इफ़ यू कॉपी दिस मैसेज एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, बाय द वे इट वोंट वर्क, बिकॉज उसके बाद सेल्स भी आनी चाहिए. एंड यू जस्ट स्टूपिड इफ यू जस्ट कॉपी इट. कोई बंदा यूट्यूब वगैरह पे कॉपी कर रहा है, यू डोंट इवन हैव द सर्विसेज आई सेल. सो आई विल सी एग्जीक्यूशन लॉग्स अगर कोई है बंदा. ईमेल. I don't know if I can show you the email or not exact. बट या बेसिकली यहाँ पे देख लो. मान लो मैं आपका एक डेंटिस्ट है, सैलून सॉरी, एंड आई एम लाइक सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपनी नेम. अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल्स नेम, मैं तो सोचूंगा हाँ क्या है. सो इफ़ यू इंपोर्ट द राइट फील्ड यू कैन पर्सनलाइज देम ऑन स्केल. कोई भी टैग यहाँ पे डाल सकते हो. एंड देन आई एम लाइक जस्ट सर्च फॉर सैलून्स इन स्कॉट्सडेल, क्योंकि मुझे पता है सारे यहाँ के. एंड सैलरी वर रैंक्ड, ये जो चीज़ है लाइक लेट्स से 200 इंस्टेड ऑफ नंबर 1. सारे लोग नंबर 1 पे आना चाहते हैं, उनकी ये चीज़ थी. सी आई नो यू ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट लाइक जेनरिक कॉम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन द रिव्यू काउंट. यहाँ पे मैंने एक और टैग डाल दिया कि उसके पास मान लो 600 रिव्यूज़ है, 700 रिव्यूज़ है, 100 रिव्यूज़ है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है. वो बंदा सोच रहे इसने मेरा पूरी चीज़ देखी, मैंने तो बस स्क्रैप करके लिखा है. बट देयर इज एन इशू लाइक योर कंपेटिटर्स, उसका जो एग्जैक्ट नेबरहुड है, लाइक जो स्ट्रीट एड्रेस है वो है. अब वो सोचता है इस बंदे को कैसे पता मैं इस नेबरहुड में रहता हूँ. आई हैव द डेटा एंड उसका नाम वगैरह. सो यू कैन पर्सनलाइज इट एक्सट्रीमली वेल अगर तुम्हारे पास ढंग के फील्ड्स है. सो दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे. एंड और क्या क्वेश्चन है, सॉरी आई माइट हैव स्किप्ड आउट. लाइक और कोई क्वेश्चन नहीं है. लाइक सेल्स जेन एआई में बाकी सारी चीज़ें हैं. जैसे मेरे को बहुत जगह जाना पड़ता था पहले, अलग अलग एक्सट्रैक्टर डाउनलोड करने पड़ते थे वो लीड स्क्रैप करने के लिए. तो ये सेल्स जेन एआई से सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम. बस ये प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं, बस Perfect. नहीं था. यहाँ पे किसी ने क्वेश्चंस डाले. हाँ जी जियान, सॉरी आई स्किप्ड यू. हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आईजी पे कोल्ड आउटरीच करना मतलब पॉसिबल है ऑटोमेशन पे? आईजी में दिक्कत ये होती है, फेसबुक विल बैन यू इफ़ यू सेंड आउट ऑटोमेटेड मैसेजेस जितना जल्दी होगा. लाइक आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. It's something which Facebook does not allow. For example, I use automations on Instagram. Like ये जो कमेंट ऑटोमेशन है, फॉर एग्जांपल जब भी कोई बंदा मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है उसको ऑटोमेटिकली लाइक मैसेजेस जाते हैं. वो बंदे को ये मैसेज चला जाता है, और अगर मान लो नहीं भी रिप्लाई करते तो ये जाता है. उसके बाद आई कैन ऐड वेट की 2 दिन वेट कर ले और उसके बाद ये मैसेज चला जाए. सो यू कैन कम्प्लीटली ऑटोमेट इंस्टाग्राम डीएम्स. आप पेमेंट सारी चीज़ कलेक्ट कर सकते हो यूजिंग सेलजेन. बट द ओनली कैच इज आप कोल्ड डीएम्स नहीं भेज सकते. लाइक अगर मान लो आपने कोल्ड डीएम भेज दिया और उसको रिप्लाई आ जाता है, तब आप यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको कर सकते हो. बट फेसबुक डज नॉट अलाउ अस. लाइक हो सकता है बट इट विल पुट अस अ लॉट ऑफ रिस्क एंड वी माइट बी बैंड फॉर एवर फ्रॉम फेसबुक. एंड API लाइसेंस सारी चीज़ चली जाएगी. सो इट्स लाइक ऑब्वियसली एक बंदा है यहाँ पे, दीज आर फ्री, आप अनलिमिटेड भेज सकते हो. इमेजिन एक बंदा 1 मिलियन DMs भेज देगा,
सो ऑब्वियसली उससे दिक्कत होती है. सो यू कैन क्रिएट एन ऑटोमेशन कि जब कोई बंदा आपको रिप्लाई करता है तब ऑटोमेशन पे ऐड हो जाता है. बट कमेंट करते तब कर सकते हो कि कमेंट पे रिप्लाई जाएगा, कमेंट लाइक हो जाएगी और उसको डीएम चला जाएगा. बट कोल्ड डीएमिंग राइट नाउ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फेसबुक डज नॉट परमिट अस टू डू दैट. बट सोन जितना जल्दी होगा लाइक आई ट्राई टू फाइंड टूल्स. एंड क्योंकि आई हैव लेवरेज कि इतने सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, सो उसके ओनर से बात होगी. सो मे बी आई विल ट्राई टू डू समथिंग टू गेट इट एडेड फॉर फ्री और समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रेपर्स वगैरह थे लाइक दे नॉट माई ओन स्क्रेपर्स, बट आई जस्ट स्पोक टू पीपल एंड आई वॉज लाइक ये प्लेटफॉर्म है, इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे तो बढ़िया होगा. सो इन द फ्यूचर मे बी, बट यू कैन नॉट सेंड कोल्ड डीएम्स, बट यू कैन ऑटोमेट डीएम. जब वो रिप्लाई कर देते हैं कमेंट पे रिप्लाई आता है. भाई मतलब आज जो मेरे कमेंट पे आपने कमेंट किया वो भी ऑटोमेटेड था? जी सर, मेरा इंस्टाग्राम है ही नहीं. आपका नाम भी होगा, रुको देखते हैं. रोहित अपलिफ्टेड, आपने शायद दूसरे अकाउंट पे किया होगा. ये सेलजन वाले पे किया था या दूसरे वाले पे? नहीं मतलब आपने आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे? अच्छा, वो जो तुमने लिखा है यूज टू बिंज वॉच योर वीडियोस. हाँ हाँ. नहीं नहीं, वो तो मैंने लिखा था. क्योंकि अगर सारे कमेंट्स को ये करने लग जाएगा तो दिक्कत होगी ना. कोई बोलेगा हाँ भाई मेरी दादी शांत हो गई और मैं लिखता हूँ या ब्रो सेंट यू इन द डीएम, तो दिक्कत होगी. सो व्हाट आई हैव डन इज कि ये 3 वर्ड्स होंगे तो ये ऑटोमेशन स्टार्ट होगी. आप इसको चेंज भी कर सकते हो. तो दीज 3 वर्ड्स नीड टू बी प्रेजेंट इन द कमेंट, तभी ये चीज़ काम करेगी. वो तो मैनुअल था, बट अगर इनको हटा दोगे तो सारे पे चला जाता. बट दैट्स समथिंग आई डोंट वांट. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? लाइक देखो, प्रॉब्लम जो भी आ रही है, जो नहीं समझ आ रहा है वो बताओगे तभी फायदा होगा मेरा. लाइक द ओनली ऑल्टरनेटिव इज दैट व्हाट इज दैट Kabir, Mayank, Prajwal, Pratik, Sahil, Saurav understand exactly what to do. And if that's the case, then you might as well leave the community because you know exactly what to do because you're not facing any issues. So that's why I took the call. That was the main aim of the call. And if that's the case, may God bless you. सेल्स जेंस के मुझे ज्यादा फीचर्स नहीं पता, बट ये ऐसा लग रहा है कि make.com जैसे ही कुछ तो भी है. Make.com बस एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है. एंड Make.com पे आपको 500 टास्क फ्री मिलते हैं, 1000 टास्क, बट उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग होता है. एंड इसको मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है मेक क्या है. बट सेलजन इज ऑटोमेशन होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट यू गेट अनलिमिटेड चीज़ें और उसके साथ में और भी चीज़ें होती है. सो Make.com के फीचर्स भी हैं, बट मोर देन दैट Make.com पे आप कैलेंडर पे इनविटेशंस बुक नहीं कर सकते, इनवॉइसेस नहीं भेज सकते. सो या उसके फीचर्स भी कवर्ड है. एनी क्वेश्चंस पीपल? और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, क्या मैं उन्हें सर्टेन टाइम पे सर्टेन टेक्स्ट भेज सकता हूँ क्या? रोज जी भेज सकता हूँ ना? यार, लाइक जैसे आई थिंक एक ऑप्शन या स्टॉप ऑन रिस्पॉन्स. मान लो आप एक बंदे ने आपको घोस्ट कर दिया एंड यू फॉलोइंग अप कि हर 1 दिन में 2 दिन में ये मैसेज जाएगा. यू कैन जस्ट बी लाइक जब वो रिप्लाई कर दे तभी ऑटोमेशन रुक जाएगा. तो अलग अलग चीज़ों के बना सकते हो. लाइक यहाँ पे जस्ट ऐड वेट फॉर 1 डे, सेव एक्शन. यहाँ पे आओ, सॉरी, या जस्ट बी लाइक या इंस्टाग्राम डीएम. यहाँ पे बना दो हे व्हाट्स द नेम ऑफ द पर्सन, कॉन्टैक्ट, हे फर्स्ट नेम, हे जियान, टेंट hear from you yet. एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो ऐड फोटो, एनीथिंग यू कैन ऐड, सारी बढ़िया चीज़ें. ऐड अ पिक्चर ओवर हियर, मे बी यू कैन ऐड एन इमोजी. उसके बाद यू सेव इट. उसके बाद एक और दिन आप करते हो कि वेट
1 day wait तो बहुत सिंपल फीचर है और भी कर सकते हो. And then you send out a DM on Instagram and you're like, yo, missing you, Zian. Boom, save action. And it'll go out. And जब वो reply दे देगा तब रुक जाएगा. Other questions, sir? हो गए मेरे क्वेश्चंस हो गए. Perfect. Anyone else? Like, what are you struggling with? Prateek, Mayank, who else are there? Kabir, Prajwal, Prateek, Sahil, Saurav. Anything, or do we end the session, boys? I think everyone has covered their questions. Background noise, that's why I won't be able to ask questions. Like, type kar do. इसको YouTube पे डाल देना, मुझे दोबारा सुनने डाल दूंगा. Are you typing it? I have one question to you, bhai. What is a video editing agency? What exactly do you mean by it? अरे सिंपल शब्दों में पूरी बायोग्राफी नहीं लिखनी. हाउ मेनी इनकम सोर्स यू हैव बता के नज़र लग जाती लोगों की. रिलेशनशिप और पैसे हमेशा प्राइवेट रखो. गलती करके सीखा है, मत रखो. कीप देम प्राइवेट. कभी गर्लफ्रेंड किसी लड़की का नाम वाम मत बताओ. जितना कम हो सकता है प्राइवेट लाइफ को दूर रखो. काला धागा विल वर्क. पता नहीं. No, like it's just some people are genuinely evil. I'll never post a picture of my daughter on the internet because some people are fucked up and they create like deep fakes and shit. तो उन लोगों से दूर रहना है. That's why I don't like posting like a lot of content. बस ये दिक्कत है. अरे भाई 1 2 3 तो बता दो. हाँ, they're mostly related. So if you try to count, you can say maybe 2 or 3, but they tie back in. So operational complexity नहीं है. If you try to start 2 businesses, तुम्हारा इतना complex हो जाएगा, but मेरे like kind of related है. So it ties back in together. So you can say 1, but on paper maybe 2 or 3. And video editing agency, like, is it a good idea? Just ask yourself why. And the thing is, video editing agency जो तुमने अब तक define नहीं किया मेरी जान, is I know nothing, I'm just learning then taking action. That's fine. But like, use common sense. What does a video editing agency imply? It implies that you own an agency where freelancers are doing work below you and you are getting deals and closing clients. And uske liye I don't think so you need to learn video editing. I think you need to learn how to get clients, how to book appointments and how to close deals. Because video editing एक freelancer को आनी चाहिए जो agency में काम कर रहा है. So be clear, either you are becoming a freelancer or you're starting an agency. दोनों चीज़ अलग नहीं होती. I know ईमान गार्ड जी told you कि दोनों चीज़ें सेम होती just to stroke your ego. क्योंकि yeah, everyone likes to say I am an agency owner. I was having a sales call yesterday with the agency owner. इतनी चौर में बड़ी बड़ी बातें करते ये वो. मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, भाई प्रॉफिट कितना हुआ पिछले महीने. घुमा फिरा के घूमने लग गया. मैंने कितना बोला, उसके बाद इज लाइक हाँ 40,000 प्रॉफिट. मैंने बोला ठीक है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है, बट इतना ईगो होता है लोगों में. या इफ यू वांट टू डू दैट बिजनेस, आई एम नॉट सेइंग दैट्स द बेस्ट थिंग. नहीं, सी सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन, मार्केटिंग एंड सेल्स इज नॉट ऑप्शनल. इट्स नॉट ये सीखनी पड़ेगी कि उसके बिना नहीं चलता. इट्स लाइक पतला होना है, डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्लीप होनी चाहिए.
So for that you need marketing, sales and product, and product in your case will be service delivery. So you can maybe outsource service delivery, but वही चीज़ है, कमिंग बैक टू ये जो क्वेश्चन है कौन सी चाहिए आउटरीच के लिए, आई डोंट थिंक सो कॉपी राइटर बहुत अच्छा बनना है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वो जो बंदा उसका दिमाग कैसा होता है, एंड उस बंदे की राल क्या चीज़ पढ़ के टपकेगी. जितना अच्छे से उन्हें जानते हो उतना ज़्यादा होगा, और जितने ज़्यादा अच्छे से जाने जस्ट टेक अ लॉट ऑफ सेल्स कॉल्स. आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, बिकॉज आई हैव टेकन हंड्रेड्स ऑफ सेल्स कॉल्स विद पीपल लाइक यू. अब तो नहीं लेता, सो दैट्स आई एम प्रोबेबली फॉलोइंग ऑफ यूट्यूब में अगर कुछ बेचना होता, बिकॉज I don't speak to people who are at zero, so I don't understand you as well as I did maybe like 3 months ago. So वो चीज़ होती है. एंड जो चीज़ है चैट जीपीटी यूज़ कर सकता है क्या कॉपी राइटिंग के लिए, अगर नहीं आती तो भाई चैट जीपीटी, मान लो तुम पूछते हो चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी क्या मैं छत से कूद जाऊँ, और वो बोलता है हाँ छत से कूद जाओ. अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत है तो तुम उसकी बात फॉलो करोगे और छत से कूद जाओगे. बट अगर तुम्हें पता है कि छत से कूदना गलत है तो तुम नहीं कूदोगे. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, चैट जीपीटी से मैं कॉपी लिखवाता हूँ बहुत अच्छी, बट दैट इज़ बिकॉज आई ऑलरेडी नो हाउ टू राइट कॉपी, और मुझे पता है ये कॉपी अच्छी है ये कॉपी बेकार है. बट अगर मैं कॉपी लिखवा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं अच्छी कॉपी होती क्या है, और वो कुछ भी बना के दे देता है और मैं उसे भेज देता हूँ, ऑब्वियसली दैट स्टुपिडिटी. सो सबसे पहले खुद सीखो क्या चीज़ अच्छी होती है, फिर उसके जो प्रॉम्प्ट दे के जो कॉपी बनवा रहे हो उसे अच्छा करवाओ. क्योंकि जब तक खुद ही नहीं पता अच्छी चीज़ क्या है तब तक क्या ही करवा सकते हो, वो हमेशा तुमसे नीचे होगी. सो आई स्टिल राइट अ लॉट, आई लाइक राइटिंग लॉन्ग ट्वीट्स ऑन ट्विटर. कुछ ना कुछ राइट किया करो, बिकॉज द बेटर यू गेट एट राइटिंग द बेटर यू गेट एट स्पीकिंग. राइटिंग से मुझे पैसे नहीं आते, बट इट्स जस्ट नाइस स्किल टू हैव. सो गेट बेटर एट राइटिंग विच इज़ ऑब्वियसली कॉपी राइटिंग. नाम हाँ मैं ईमान गार्जी का वो कोर्स देख रहा था यार, राइट. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि एजेंसी क्या होती है. एक बंदा जो कि नीचे अपने लोगों को हायर कर रहा है, सो ही इज़ अ जीनियस मार्केटर, वन ऑफ द बेस्ट एट मार्केटिंग. किसी को भी समझना है पढ़ना है मार्केटिंग के लिए, ही इज़ अ फकिंग जीनियस. हाँ नहीं देगा, नहीं देगा, पहले खुद करना होता है. लाइक क्या नाम था उस बंदे का, ये दिख रहा है. डोंट स्टार्ट एन एजेंसी इफ यू थिंक इट्स एन ईजी वे. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन कॉलेज. ये था या कुछ और था. ओन एजेंसी. How are you going to hire people when you can't even sell your लाइक बेसिकली इस बंदे की एक रील थी, अब मुझे मिल नहीं रही, पहले थी. बेसिकली वो सेइंग लाइक फ्रीलांसिंग एजेंसी ओनर बनना ये वो, इट्स नॉट एज फकिंग ईजी एज जस्ट लाइक क्लोजिंग अ क्लाइंट फॉर समथिंग विच यू एब्सोल्युटली डू नॉट नो एंड जस्ट गिविंग द वर्क टू समवन एल्स. इतना आसान होता तो सब लोग कर लेते, राइट. सो आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन इट. मैंने कभी ड्रॉप सर्विसिंग की नहीं है, सो डोंट टेक माई एडवाइस ऑन इट. बट मुझे लगता है इन माई पर्सनल हम्बल ओपिनियन, जो चीज़ आप एक अच्छे बंदे से अच्छी एक्सपेक्ट करते हो, मुझे वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, तो एक बंदा मुझे वीडियो एडिट करके दे देगा. मैं जो शायद सोच रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, शायद जो क्लाइंट्स आते हैं वो अच्छी ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है. तो पहले खुद उस चीज़ में बढ़िया बन जाओ, और जब खुद एक बार उस चीज़ में बढ़िया बन जाते हो, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉन्ग. मुझे दिल से लगता है 3 से 7 दिन में किसी भी स्किल में आप 80% लोगों के ऊपर जा सकते हो. 3 से 7 दिन में, अगर जेनवनली दिन में 4 से 8 घंटे दोगे और ढंग की जगह से सीख रहे हो और ढंग की एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाहते हो, 3 से 7 दिन में बन सकते हो. सो जस्ट लाइक गेट गुड एट समथिंग, डू एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सकता है अकेले. लाइक आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, लाइक एक या मैक्सिमम 2 होंगे, लाइक बिकॉज आई कैन मैनेज द वर्कलोड माई सेल्फ. सबसे पहले गेट गुड, स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू पीपल, सिस्टमाइज एंड ऑपरेट, ताकि वो चीज़ जितना ज़्यादा ऑटो, लाइक टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी चीपर देन पीपल. मैं चैट जीपीटी से जो काम करवाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें बनवाना, लाइक ह्यूमंस विल टेक अ लॉट ऑफ मनी. सो जितना ज़्यादा टेक हो सकता है उसको उतना यूज़ करो. लाइक सेल्स है, मान लो आई डू अ सिंपल मैथ, मान लो लाइक आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू पिच यू समथिंग. मान लो तुम एक एजेंसी के पास जाते हो एंड यू टेल देम तुम्हें अपना गूगल में बिजनेस ऑप्टिमाइज कराना है, योर लोकल बिजनेस. वो बंदे बोलेंगे सर आप हमें 50,000 से 70,000, एक बहुत एवरेज रेट है, 70,000 रुपये तुमसे ले लेंगे. ये तो फिर भी छोटी चीज़ है.
मान लो आपकी एक एग्जिस्टिंग साइट है और वो बंदा आपको वर्डप्रेस होस्टिंग बेचना चाहता है, 5 से 10 हज़ार रुपये महीना का ले लेंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू पिच यू एनीथिंग, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। उसके बाद मान लो एक बंदा है, वो एक सिंपल ऑटोमेशन, एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी, तुमने नाम सुना होगा। एक सिंपल ऑटोमेशन के लिए एक एजेंसी आराम से, कह रहा हूँ, लेकिन दुबई में कोई भी बिजनेस होता है, इससे आराम से कम लाइक 50 से 60 हज़ार तो लेती है मिनिमम। $900 $800 से शुरू होता है। एंड यहाँ पे तुम्हारे लिए लाइक वो स्निपेट्स बनाते हैं, लाइक चीज़ें जो तुम बार बार यूज़ कर सकते हो। एंड दिल से हमने आपका पूरा कन्वर्जन चीज़ ऑप्टिमाइज कर दी, पूरा ऑटोमेट कर दिया। एंड देन दिल बी लाइक हमने आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग ऑटोमेट कर दी, एंड दे जस्ट क्रिएट लाइक अ सिंपल कैलेंडर। उसके बाद दे लाइक हमने आपके नर्चर कैंपेन सेटअप कर दिए, सारी चीज़ें। लाइक इफ़ यू गो टू एन एजेंसी एंड टेल देम कि मुझे अपने कस्टमर्स के लिए एक नर्चर कैंपेन बनाना है, गो टू अ यूके बेस्ड एजेंसी, $3,000 $2 लाख महीना का लेंगे। एंड व्हाट they'll do is they'll select all of your fucking contacts and send them an email using ChatGPT, जो तुम खुद भी कर सकते थे। एट द सेम टाइम लाइक मान लो इनवॉइसिंग कहते हैं, दिल से वी विल ऑटोमेट ऑल ऑफ योर इनवॉइसिंग, वील इंश्योर दैट क्लाइंट्स पे यू ऑन टाइम, एंड फॉर दिस दे गोना चार्ज यू लाइक 1 लाख। एंड तुम बोलोगे इतने पैसे क्यों ले रहे हो? यूर लाइक आप 20 लाख रुपए पेमेंट प्रोसेस करते हो, इमेजिन 1 लाख देके आप सारी टाइम नहीं कलेक्ट कर पाते, इससे आपको 3 लाख 5 लाख रुपए कॉस्ट बचेंगे। दैट्स वाई लाइक एजेंसीज का नाम खराब हो चुका है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, बट ये चीज़ यहाँ है। लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू ह्यूमंस। मान लो एक एजेंसी के पास जाते हो, SMMA का क्या प्राइस है, तो खुद ही ईमान गार्ड जी का कोर्स देख रहा है वहाँ पे, उसने बोला होगा ना $2,000 $3,000 चार्ज कर, तो बंदा बोलता है ऑटोमेटेड कंटेंट पोस्टिंग, आप यहाँ पे आओ अनलिमिटेड कंटेंट डालो CSV से। उसके बाद बोलता है हम आपको कंटेंट कैलेंडर देंगे। अच्छा आप एक डेंटिस्ट हो, हम आपको एक कंटेंट कैलेंडर देंगे, एंड यू कैन जस्ट कम ओवर हियर। टेक्नोलॉजी ने, सॉफ्टवेयर ने तेरा पूरा कंटेंट कैलेंडर बना के दे दिया। उसके बाद यू लाइक क्या कहते हैं, ये लाइक हाँ वो बोलेंगे हम आपको कंटेंट क्रिएट भी कर देंगे, कैलेंडर छोड़ो, यू कम ओवर, यू टेल द फकिंग AI बॉट टू क्रिएट द कंटेंट फॉर यू, एंड इस चीज़ के पैसे लेंगे। ईमेल मार्केटिंग आपकी कर देंगे, या ब्रो लाइक गिव मी $2,000 अ मंथ, बूम यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। हम आपका बिजनेस ऑटोमेट कर देंगे, $3,000 अ मंथ, बूम यू कैन फकिंग डू दैट। साइट का क्या प्राइस है बाहर वेबसाइट बनाने का? मैं जिन लोकल बिजनेसेस से बात करता हूँ उनसे लाइक कोई भी चीज़ करोगे देखो नबी लाइक हाँ हम 60,000 70,000 रुपये दी थी साइट की। ब्रो वेबसाइट्स टेक फकिंग 5 मिनट्स टू मेक। रेस्टोरेंट की बनानी, लेट से रेस्ट या लाइक बूम, लेट से मुझे रेस्टोरेंट के लिए चाहिए या जिम के लिए चाहिए, मान लो बूम रेडी, यहाँ पे जाओ अपना नाम वाम टेक्स्ट चेंज करो, अपने आप बन गई। 5 मिनट का काम है। उसके बाद यू गो टू फनल, यू टेल फकिंग ChatGPT और AI एंड यू लाइक या बस फनल बता दो, 30 सेकंड में आपका फनल तैयार है। गो टू फकिंग Fiverr राइट नाउ। Fiverr पे सबसे सस्ते लोग मिलते हैं, फ्रीलांसर्स, वो इसके 10 से 30 हज़ार रुपये लेते हैं। किसी एजेंसी के पास जाओ 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, कोई एजेंसी को बोलो ऑटोमेटेड वेबिनार चला लो और पैसे, साइट्स कुछ भी कर लो, फॉर्म के पैसे अलग लेंगे। उसके बाद कम्युनिटी बनानी है, मान लो ये क्या दिक्कत हो गई, या यू गो टू school.com चार्जेस यू 8,000 रुपीज़, बूम यहाँ पे बनाओ अनलिमिटेड फ्री में। या कोई कम्युनिटी कोई एजेंसी आएगी, फेसबुक ऐड चलाएंगे, आपको रिपोर्टिंग बना के देंगे सिस्टम, एंड दे गोना चार्ज यू लाइक thousands of dollars. See all your fucking Facebook analytics over here. The point I'm trying to convey is technology is 1,000 times cheaper. So सबसे पहले get good at something, start delivering services, जितना ऑटोमेट हो सकता है और डेलीगेट हो सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से उतना करो। जब नहीं हो सकता तब लोगों को ऐड करो। हाँ What should I call and identify myself? I haven't made like it does not matter bro. इतना क्या करना है, कौन पूछ रहा है, बस जाओ करने लग जाओ। एक तो हो गया सेल्स कॉल, और क्या किया भाई तुम, ये तो कर लो, सेल्स कॉल से ही पैसे आएंगे, वो कर लो, उसके बाद सब हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से मैं अपने पोटैटो PC से यही कर सकता हूँ। I don't think so, bro. Like, maybe I'm being biased. I don't know, man. You have to figure out what... It's a concept I gave बहुत पहले, like बहुत लंबा हो जाएगा, अब समझाऊंगा तो अगली क्लास में याद दिलाना। Like, it's your duty, मयंक, कि POS याद दिलाना, पॉइंट ऑफ सेल अगली क्लास में एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ट्रांजैक्शंस के जितना पास तुम हो सकते हो उतने पैसे कमाओगे।
एक बंदा अच्छा वीडियो देखेगा, उसके बाद शायद वो वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे रिव्यूज़ पढ़े, उसके बाद शायद वो खरीदेगा। सेल यहाँ पे हो रही है वेबसाइट पे, तुम्हारा वीडियो एडिटिंग यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम एक बंदा बोलता है मैं आपको एक ऐसा पेमेंट सोल्यूशन दूंगा जिससे आपका कन्वर्जन रेट 150% इंक्रीज हो जाएगा। अब वो एकदम सेल के पास है, और इफ़ यू अप्रोच मी एज अ बिजनेस ओनर, आई एम गोना फाइंड दैट मच मोर यूजफुल कंपेयर टू जो भी आप सर्विस अपनी वीडियो एडिटिंग की बेच रहे हो। सो दैट्स वाई वीडियो एडिटिंग एजेंसीज, पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसीज, वेब डिज़ाइन एजेंसीज, इनको दिक्कत होती है हमेशा ट्राइंग टू सेल द सर्विसेज, बिकॉज टैंजेबल आउटकम कोई विजुअलाइज नहीं कर सकता। बट अगर मैं बोलता हूँ आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो एंड मैं आपकी कन्वर्जन रेट 2.5 गुना कर दूंगा, आप सीधा देख सकते हो 25 लाख रुपए रेवेन्यू होगा। सो दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। दैट्स इट ब्रो, लाइक जस्ट गेट योर फर्स्ट सेल एज सून एज पॉसिबल। ना मन में डमास थॉट कि मुझे रियल लाइफ में जाकर क्लाइंट्स को अप्रोच किया है और साथ में वैसे डीलिंग सीखनी है, तो नो ब्रो, लाइक देर आर ऑलवेज स्मार्टर वेज। लाइक आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, बट लेजी पीपल आर फैंटास्टिक आई बिलीव, बिकॉज उनके पास एक आलसी इंसान जिसके सपने बड़े हैं और आलसी है, इट्स अ चीट कोड ब्रो। दे गोना फिगर आउट समथिंग। लाइक आई न्यू फॉर जैकशट कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीख सकता था, सो इट टेक्स फकिंग 5 minutes टू क्रिएट अ वेबसाइट। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 8.2 billion, चैट जीपीटी यूजर्स 180.5 million, टू मच गैप टू क्लोज, गेट आउट ऑफ योर हेड ब्रो। लाइक इतना मत सोच, कर ले कुछ। लाइक है तो फिर करो। या रिमाइंड मी, इन लोगों को आउटरीच करके कोई फ़ायदा है? फॉरेन इंग्लिश से बात कैसे करें? अगर इंग्लिश ख़राब है तो इम्प्रूव योर फकिंग इंग्लिश एंड स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। माय फर्स्ट क्लाइंट वाज एन इंडियन क्लाइंट, आई डिड नॉट नो इंग्लिश इतने अच्छे से, एंड इंग्लिश इज़ अ लर्नेबल लैंग्वेज, you can fucking learn it. There are people from South America, if they can learn perfect English, then you can learn it as well. Yeah, perfect. Outreach as much as possible, honestly, it works. Anything else? And the last thing is, for one person who wants to join SalesGen, you can just send me a DM on this community. Like यहाँ पे ये जो community है SalesGen AI, you can just come and जैसे यहाँ तो मैं अकाउंट हूँ, यहाँ पे दबाओगे तो फिर यहाँ पे सर्च करके 100 मिल कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट गिव मी व्हाट यू थिंक इज़ अ फेयर प्राइस फॉर दिस सॉफ्टवेयर। जो भी तुम्हें लगता है कि फेयर है, जितना तुम्हारे दिमाग में नंबर आता है, एंड एट दैट प्राइस आई विल गिव एक्सेस टू वन पर्सन, and the first person who DMs me gets access to it. So yeah, that's it. जो प्राइस तुम्हें लगता है फेयर है, लाइफ टाइम एक्सेस टू SalesGen फॉर दैट प्राइस, एंड फॉर वन पर्सन दैट्स द डील। लाइक जस्ट कम ओवर टू द कम्युनिटी जो है, एंड जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन चैट यहाँ पे दबा के, जो होगा या जस्ट क्लिक ऑन या एंड जस्ट फाइंड मी एंड सेंड इट। बेस्ट बल्क व्हाट्सअप सेंडर, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से SalesGen में जो है, बिकॉज यू कैन सेंड अनलिमिटेड मैसेजेस। लाइक रॉकेट सेंडर आई यूज्ड, 200 मैसेजेस की लिमिट होती है फ्री अकाउंट में। जिस बंदे के साथ मैंने पार्टनर किया, ही हैज़ लाइक अनलिमिटेड मैसेजेस completely free of cost. How to create systems for everything? I think I answered that question. Yup. नहीं किया तो बता दो, लाइक कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सो आई आंसर इट। नहीं, अब नहीं है कुछ और, अगली बार के लिए सोच के लाऊंगा। Perfect. So this offer is still valid. The first person who DMs me, I give him access. Yeah, that's it. If any, what's a New Year resolution? I don't know, bro. Like इतना क्या सोचना? Enjoy करो. New Year पे जाऊँगा, पार्टी करूँगा. I'll have a nice time with people I love. I'll speak to the girl. I'll dance. I'll wear nice clothes. I'll smell well. Yeah, that's it. सुबह बिजनेस पे काम करूँगा, शायद सेल्स कॉल ले लूँगा, जिम चला जाऊँगा, स्पारिंग कर लूँगा। वही तो लाइफ है, और क्या चाहिए? मज़ा आता है उसमें। सो जो आप कह रहे हो कि इस बिजनेस मॉडल को क्या कहते हैं, अरे यार इतना क्यों सोचते हो? बिजनेस मॉडल को क्या कहते हैं? मुझे तो आज तक नहीं पता। क्या फ़र्क पड़ता है? बैड आइडिया। लाइक यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग. लाइक नो वन fucking buys an ebook or a software. You sell futures, and I'm not selling you sales, and I'm selling you a better future for your life, and that's what people want. एंड एक ई बुक से बहुत कम चीज़ है जो एक्चुअली में हो सकती है। ट्राई करके देख लो, मैंने तो आज तक कोई ढंग का बंदा नहीं देखा, पता नहीं सब क्यों करना चाहते हैं। लाइक ई बुक से कोई ये नहीं सोता, हाँ वो माय गॉड आई एम गेटिंग फकिंग
hard, like this ebook is gonna solve every problem which I have. I've sent you the DM, Somin Bhai on sales, and yeah, I'll get back to you as soon as possible. You will find the recording of this. Firstly, जो सेल्स ऐप है वेबसाइट कहीं पे भी विजिट कर रहे हो, लाइक लर्निंग सेक्शन में इट विल बी अपडेटेड, लाइक यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे. एंड फॉर एग्जांपल लाइक अभी तो कोर्स कोई है नहीं मेरे अकाउंट पे, but I'll upload it as a course. You can go through all the recordings, and also I'll probably upload it in a couple of days on YouTube. If you want early access, like कोई serious लोग है, like create a post in the community and मैं वहाँ पे reply में इसका link दे दूँगा. Yeah, just give me a second. Like I'll stop the recording, and once everyone leaves, I'll give you access. Anything else? Anyone else? कोई questions? Anything? Or do we end it? हो गया भाई मेरे क्वेश्चंस. Perfect. Take care, everyone. If anything I can help you with, once again, just go to the community, and yeah, that's it. Like in the future, I'll be adding some more. By the way, कोई YouTube पे देख रहे, this is completely free to join. You can join it, and यहाँ पे सारे वो मिल जाएंगे फ्यूचर में learning section, and the events जो भी चीज़ें हो रही होंगी यहाँ पे कैलेंडर में मिल जाएगा. लीडर बोर्ड इज बेसिकली आपकी क्या रैंक है, एंड इन द फ्यूचर लाइक गेमिफिकेशन ऐड होगा, अभी तो बनाइए आज ही. सो यू विल सी ऑल द रिवॉर्ड्स विच यू कैन अनलॉक, एंड आई एम थिंकिंग जो एक पर्टिकुलर लेवल पे होंगे दे गेट लाइक लाइफ टाइम फ्री एक्सेस टू SalesGenAI, सो दैट इज ऑल्सो देयर. एंड या दैट्स इट. सो या यहाँ पे अलग अलग जो सेक्शंस है, जनरल डिस्कशन, एनीथिंग ऑन योर हेड यू कैन जस्ट आस्क इट, एंड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ऑल योर क्वेश्चन, सो दैट आई कैन आंसर देम. क्योंकि सोचते हो तो भूल जाते हो, सो जस्ट ड्रॉप इट एंड अगले हफ्ते आई आंसर. विंस कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई भी चीज़ जो तुम्हें लगता है पिछली बार से बेटर की है, जस्ट हिटिंग अ PR इन द जिम, वट एवर इट इज, you can post it. All announcements will be posted over here. In case anyone is wondering how do you get more points, like why is Akash at number 1, that is because I liked this post. So the best way to improve your ranking is to create more posts and reply more, क्योंकि हर एक like से तुम्हें points मिलते हैं. That's how everything works. Take care. Have a beautiful, fantastic day ahead. And another thing is, I've created an automation कि wins पे जो post होती है उस पे जो like होती है उसके double points मिलते हैं. So the more wins you post, the better it is. Yeah. Take care, man. Have a beautiful, fantastic day ahead. Thank you. A nice day.